Hello everyone, good afternoon. Welcome to QA Labs for you. This is Java session 6. So in this session, we are going to cover Java, this collection topic. So collection framework in Java. Then we have this purpose of collection, some of the key interfaces which are like there in collection framework, some methods, reusable methods of collection framework. Then we will discuss this collection versus collections, Java wrapper classes, array list implementation, and this iterating over an array list. So these are the topics which we are planning to cover today. But before that, Okay. Ravi, yes, what we have covered till now, till like this session 5, like what do you feel that you have covered everything? Because from now onwards we are going to cover this collection topic, and it might require 2 sessions. It will not cover in a single session because it's a vast topic, and I will try to cover like all the overview in today's session. I will try to give you some hands-on or real-time experience for this array list. I will show you different types of reusable methods, how we can utilize those methods and like perform whatever the examples we have. So we will do the hands-on for the array list. Rest, whatever different, I can say, different classes or different interfaces which are available in collection framework, we will discuss in different sessions, because my main focus is that we should learn in depth about this collection topic. Because from interview point of view, most of the interviewer will ask questions from collection topic. Okay, and if we are not having proper knowledge about the collection, then it will be a like risk for us from interview point of view. Okay. Okay. So this is also used in automation. Yes, this is also required, and I will try to cover those topics which are like most required in the automation. Okay, there are lots of I can say classes, lots of interfaces. There are tons of reusable methods which are right now available in this collection framework, but I will try to cover those methods which we will frequently, or we can frequently use in the automation. Okay, so that you can understand how we will implement those particular I can say list, like array list. Here in this particular session, we will discuss about array list. I will show how we can implement array list, how we can utilize those methods which are already available in our collection framework. Okay, rest all the things we will discuss in next sessions, so that whatever is required for the automation, we should cover in depth at least. Okay. Okay. Yes. So I will give you entire overview, like what things are right now available in collection framework, and I will try to cover all the possible implementation, all the possible methods, try to cover them, so that at least you can get some idea. We will do some hands-on in this particular session. I have prepared some of the examples so that you can get some idea how we can implement these collection framework and how we can utilize. Okay, so Okay. the topic is collection framework in Java. Okay, so collection framework है क्या? अगर मैं बात करूं बेसिक, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमारे पास, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, और बहुत सारे रीयूजेबल मेथड्स हैं. ओके, सो ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि कलेक्शन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो हाँ, एक ऐसा, मैं बोलूं, एक ऐसा फोल्डर या एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जहां पे हमारे पास बहुत सारी क्लासेस या इंटरफेसेस हैं. ठीक है, कलेक्शन की अगर हम बात करें तो एक ग्रुप हो गया. नॉर्मल अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एक ग्रुप हो गया, करेक्ट, कलेक्शन के लिए. Okay. ठीक है, सो अगर हम डेफिनेशन वाइज अभी इसको लेके चलते हैं, तो डेफिनेशन में हम क्या करते हैं? जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क is a collection of interfaces and classes which help in storing and processing the data efficiently. यानी क्या कर रहा है ये? एक कलेक्शन जो कि स्टोर कर रहा है यहाँ पे हमारे जो भी डेटा है उसको, किसके बेसिस पे?
हमारे इंटरफेसेस या क्लासेस की बेसिस पे। फ्रेमवर्क हैज सेवरल यूजफुल क्लासेस which has tons of useful methods which make our task super easy। कैसे super easy करेगा? पहले हम अभी बात करें, अगर कोई भी हमें implementation करनी होती थी तो implementation के लिए हमें method बनाने होते हैं, method बनाने के लिए हमें logic set करना पड़ता है। बट अगर हमें कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें रीयूजेबल मेथड्स दे रहा है, राइट, इट मींस वो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है। हमें सिर्फ उन मेथड्स को कॉल करना है और हमारा आउटपुट आ जाएगा एज एक्सपेक्टेड, राइट। अब वो कौन से मेथड्स हैं, हम उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो हम अभी एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ देखेंगे। बट जो यूज है कलेक्शन का वो यही है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे रीयूजेबल मेथड्स मिल जाते हैं जिनकी वजह से हम अपने टास्क को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके, collection framework provide interfaces, implementation classes, ready-made methods and other resources to deal with a group of elements। यहाँ पे हम group of elements की बात करेंगे। आज हम जो collection framework की बात कर रहे हैं, इस टॉपिक के लिए हम कुछ अपने पीछे के टॉपिक्स को भी कंसिडर करेंगे, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। All the interfaces and classes for the collection framework are located in java.util.package। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है, it's just like theory so that you can get some idea about collection framework। rest आगे हम आज के स्पेशली आज के सेशन में हम पूरा ओवरव्यू कवर करेंगे, कितने हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस हैं। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस। उन अगर इंटरफेसेस हैं इट मींस उनकी कुछ इंप्लीमेंटेशन क्लासेस भी होंगी, अदरवाइज हमारा कोई यूज नहीं होगा इंटरफेसेस का, करेक्ट। तो हम कुछ क्लासेस को देखेंगे। अब अगर क्लासेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनमें मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन हुई होगी और उनके कुछ मेथड्स होंगे, तो उन मेथड्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेसिक जो भी हमारी क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें आज हम एक पूरे सेशन में सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, सब कुछ देखेंगे। नेक्स्ट, अब ये तो बात समझ में आ गई यहाँ पे कि कलेक्शन क्या है। ओके, कलेक्शन है एक जहाँ पे हमारे इंटरफेसेस हैं एंड क्लासेस हैं, जिसकी वजह से जो हमें हेल्प कर रहा है स्टोर करने में, प्रोसेस करने में डेटा को। बट ये काम तो हमारा पहले भी होता था, ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं बात करूं कलेक्शन की, कलेक्शन अगर नहीं था क्या तब हम अपना डेटा को स्टोर या प्रोसेस नहीं कर रहे थे? हम तब भी कर रहे थे। अगर हम अप्रोच वाइज बात करें तो हमने ये दो अप्रोचेस ट्राई करी हुई हैं। इफ यू रिमेंबर, सपोज आई वांट टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज 100 वैल्यूज। जब हमने एरे नहीं पढ़ा था उससे पहले हम कैसे करते थे? int a is equals to 1, int b is equals to 2, int c is equals to 3 and so on, right? With this approach we need to do declaration and initialization using 100 variables। यानी यहाँ 100 variables मुझे required होंगे। आप देख रहे हो कि कितना कितना कोड, हमारा कोड की लेंथ भी बढ़ गई। जब कोड की लेंथ बढ़ गई हमारी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट आएगा, करेक्ट। उस अप्रोच को ओवरकम करने के लिए हमने क्या सीखा था? एरे, ठीक है। अब एरे में हमने क्या था? सिंगल लाइन में हमने अपना जो भी डिक्लेरेशन था और इनिशियलाइजेशन था, दोनों चीजें हमने एरे के थ्रू अचीव कर ली थी। अगर मुझे 100 अपने यहाँ पे कुछ वैल्यूज स्टोर करानी है, मैंने क्या किया? इंट ए 100 ब्रैकेट में करा और इसके अंदर मैंने वो 100 वैल्यूज लिख दी, करेक्ट। विद दिस अप्रोच वी कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, करेक्ट। यहां तक तो हम ये सारी चीजें अचीव कर रहे थे, जो बातें हमने यहाँ कही। फिर अभी यूज क्या हुआ कलेक्शन का? अभी भी समझ नहीं आया कि भाई जब हम ये दो चीजों से हम कर सकते थे, हमारे पास दो ऑप्शन थे, दो अप्रोचेस थी और हम उससे ऑलरेडी अचीव कर रहे थे, तो फिर कलेक्शन की रिक्वायरमेंट कहाँ आई? अब कलेक्शन की रिक्वायरमेंट अगर समझनी है तो हमें एरे के ड्रॉबैक समझने होंगे। जो एरे के हमारे ड्रॉबैक्स होंगे उन्हीं को ओवरकम करेगा कलेक्शन। ओके, हम देखते हैं क्या हमारे ड्रॉबैक्स थे। थर्ड अप्रोच कहती है यूजिंग कलेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है, बट हम क्यों करें? पहले हम एक बार एरे के जो भी ड्रॉबैक्स हैं उनको देख लेते हैं। दिस अप्रोच वी विल पिक आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग पॉइंटर्स। हमें ये अप्रोच तभी लेनी है जब हमें ये जो पॉइंटर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं वो अगर वहां पे हमें कुछ कंपनसेट करना पड़ रहा है या हमें उन्हें कंसीडर करना पड़ रहा है। सपोज अगर मैं एरे की बात करूं तो एरे में हम सिंगल लाइन में तो डिक्लेरेशन कर रहे हैं, करेक्ट है, मल्टीपल वैल्यूज को भी हम सेव कर ले रहे हैं। मेरा वन लाइन में प्रोग्राम भी हैंडल हो जा रहा है, जो हम 100 लाइन्स यहाँ यूज करते हैं यहाँ पे एक लाइन में हो रहा है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? फिक्स्ड इन साइज। एरे हमारा फिक्स्ड इन साइज होता है। इफ यू रिमेंबर इन लास्ट सेशन, लाइक वी हैव स्टोर 7 वैल्यूज, देन विल
Sorry, I think due to internet connectivity issue, I lost the like connection. Okay, so we were discussing about the third approach, right? थर्ड अप्रोच में हम क्या डिस्कस करें, कलेक्शन के बारे में. बट कलेक्शन के लिए उससे पहले हम ड्रॉबैक्स डिस्कस कर रहे थे एरे के, करेक्ट? सो पहला जो एरे का ड्रॉबैक था, फिक्स इन साइज. प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं 100, अब 100 के बाद सपोज मैं 101 कोई एक एलिमेंट को इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, इन दैट केस वो चीज हम अचीव नहीं कर सकते एरे से, करेक्ट? क्योंकि हमने साइज उसका फिक्स कर दिया. पहला प्रॉब्लम ये हमें मिला. सेकंड, एरे, जब हमने एरे कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमें पता था कि एरे जो होता है वो होमोजीनियस डेटा को ही हैंडल करता है, करेक्ट? सिमिलर काइंड ऑफ डेटा. सेकंड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम स्पेशली मैंने बताया था कि रेडीमेड मेथड्स एरे में नहीं होते हैं, इसलिए जितनी भी इंप्लीमेंटेशन एरे में करनी है वो हमें खुद से लॉजिक बनाने पड़ेंगे. ठीक है. फोर्थ जो है वो एज अ एडवांटेज मैं बोलूंगा कि एरे में हम अपना प्रिमिटिव एज वेल एज ऑब्जेक्ट टाइप दोनों ही स्टोर करा सकते हैं. ठीक है, ये हमने एग्जांपल्स में भी देखा हुआ है एरे के सेशंस में. बट अगर बात करें यहाँ पे कलेक्शन की विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंटर्स, अगर हमारा जो एरे है फिक्स इन साइज है तो कलेक्शन में हम ग्रोएबल इन नेचर होता है. ग्रोएबल इन नेचर का मतलब कि हम रन टाइम पे भी बढ़ा सकते हैं. इट मींस कि सपोज मैंने यहाँ पे 100 डिफाइन किया था, उसके बाद 100 के बाद 101 अगर मुझे असाइन करनी है वैल्यू, वो चीज हम कलेक्शन में अचीव कर सकते हैं एट द रन टाइम. ओके. सेकेंड थिंग, वहां पे हम सिर्फ होमोजीनियस डील कर रहे थे, बट यहाँ पे कलेक्शन के थ्रू हम होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस दोनों ही हैंडल कर सकते हैं. अगर हम चाहते हैं होमोजीनियस तो ठीक है होमोजीनियस, अगर हम हेट्रोजीनियस इट मींस डिफरेंट काइंड, डिफरेंट लाइक 2 टाइप्स ऑफ डेटा हम ऐड करना चाहते हैं, हम वो भी अचीव कर सकते हैं. रेडीमेड मेथड्स हमारे यहाँ पे कलेक्शन में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा रीयूजेबल मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऐसे ही रिजॉल्व हो जाती हैं. अभी मैं एक एग्जांपल शो करूंगा जिसमें बहुत सारे जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन है या अगर मैं बोलूँ एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, अगर सपोज मुझे रिवर्स करना है या मुझे किसी चीज में कंटेंट्स चेक करना है, सारी चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट है, बस हमें उन मेथड्स को यूज करना है. सो अगर हम ये 3 पॉइंटर्स को अभी कंसिडर करते हैं, इन 3 पॉइंटर्स के बेसिस पे हमारे लिए कलेक्शंस वैल्यूएबल है, क्योंकि कलेक्शन में हमारा एक ग्रोएबल इन नेचर है. सेकंड, हम होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों को डील कर सकते हैं. एंड थर्ड इज रेडीमेड मेथड्स आर अवेलेबल. फोर्थ पॉइंटर्स, अगर एरे की बात करें, एरे में हमारे प्रिमिटिव एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स दोनों को हम स्टोर कर सकते हैं, बट कलेक्शन ओनली डील्स विद ऑब्जेक्ट्स. ये यहाँ पे एक आप इसको माइंड में लेके चल सकते हो कि हमें कलेक्शन कब यूज करना है. ये मैंने पॉइंटर्स इसलिए यहाँ पे मेंशन किए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन विद लाइक एरे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव टू ऑप्ट एरे एंड व्हेन यू हैव टू लाइक गो फॉर द कलेक्शंस. Okay, next point is if we are already aware about the size, अगर मुझे ये पता है कि मुझे कितना स्टोर कराना है, in that case array highly recommend किया जाता है because performance wise. Okay, क्योंकि कलेक्शन में क्या होता है, कलेक्शन में जब हम सपोज मैंने एक पहले कलेक्शन दिया 100 का, अब 100 के बाद मुझे 101 स्टोर कराना है, इन दैट केस वो कॉपी करता है सारी वैल्यूज को न्यू कलेक्शन के रेफरेंस में, और जो हमारा ओल्ड कलेक्शन होता है उसे डिस्ट्रॉय करता है. तो ये जो कॉपी का प्रोसेस होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इससे आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है. ओके, इट्स नॉट लाइक कि आपके सेम जो आपने कलेक्शन बनाया उसी में ऐड कर दे, ये एक नया कलेक्शन आपके लिए डेवलप करता है और विद नई डिफॉल्ट जो भी आपकी कैपेसिटी होती है उसको कैपेसिटी को बढ़ा के, जो डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है वो आपकी 10 होती है, लेकिन जब आप ऐड करते हो तो उसको बढ़ा देता है आपके लिए, सो दैट आप कल को अगर 101 के बाद आप 102 ऐड करना चाहो तो उसे भी ऐड कर सकते हो. उसके लिए फिर आपको नया कलेक्शन डेवलप करने की जरूरत नहीं होगी. और ये सारी चीजें इंटरनली होती है, आपको नहीं पता चल रहा है बट इंटरनली हो रही है, इस वजह से परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है अगर मैं कलेक्शन की बात करूं. ओके, नेक्स्ट, अगर एरे की बात करते हैं हम मेमोरी के टर्म्स में, विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी एरे इज नॉट रिकमेंडेड, इन दैट केस कलेक्शन इज रिकमेंडेड. क्यों? हम इस तरीके से ले सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे अभी 100 दिया हुआ था, 100 में मैंने सिर्फ 5 वैल्यूज ही यहाँ पे स्टोर कराई, रेस्ट 95 मेरी ये स्टोरेज मेमोरी वेस्ट हो रही है, करेक्ट? बट अगर इसी चीज की बात करें हम कलेक्शन में,
इस चीज को हम मैनेज कर सकते हैं कलेक्शन में। जैसे हम ऐड कर सकते हैं वैसे हम उसको स्पेस को कम भी कर सकते हैं, इसलिए हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो कलेक्शन में बेटर होता है। फाइन। सो अगर अभी Okay. हमने जो भी पॉइंटर्स डिस्कस किए वो हमने एरे विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन, और वी कैन से एरे वर्सेस कलेक्शन, right? So if interviewer will ask any questions like the difference between array and collection, or like why you will choose collection, you can simply put these pointers, and like interviewer will be happy, more than happy, because these are the basics which are required, and interviewer might expect these pointers. Okay. Okay. नेक्स्ट इज द इंटरफेस। जो हमने बात करी थी, कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं, मल्टीपल क्लासेस होती हैं, टन्स ऑफ मेथड्स होते हैं, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अब इसको डायग्राम व्यू में देखते हैं। डायग्राम व्यू में क्या है, हमारे पास इंटरफेसेस हैं। कितने इंटरफेसेस हैं? सबसे पहला कलेक्शन इंटरफेस है, ये एग्जैक्टली हायरार्की है जो हम अपने फ्रेमवर्क में फॉलो करते हैं। कलेक्शन इंटरफेस हुआ, फिर हमारे पास एक लिस्ट आता है, एक क्यू आता है, और यहाँ पे सेट आता है। ठीक है, अभी हम इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, फिर हम इस पोर्शन की बात करेंगे। ओके, कलेक्शन इंटरफेस हो गया, उसमें हमारे पास लिस्ट, क्यू, सेट। अगर लिस्ट की बात करते हैं तो एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, और अगर क्यू की बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू। सेट में अगर हम बात करते हैं हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, और सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, एंड ट्री सेट। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे जो कलेक्शन फ्रेमवर्क का है, ये एक फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमारा मैप आता है। मैप भी एक इंटरफेस है, उसे यहाँ पे हैश मैप जो ये क्लास है, ये क्लास है आपकी, ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास हुई। सिमिलरली लिंक्ड हैश मैप है, ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास हुई। यहाँ पे सॉर्टेड मैप या नेविगेबल मैप जो भी है, ये इंटरफेसेस है, एंड दिस वन ट्री मैप इज अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास। तो अगर ओवरऑल बात करें कि यहाँ पे कितने इंटरफेसेस हैं, तो इंटरफेसेस हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are the nine key interfaces of collection framework. Okay. So might be interviewer will ask what are all 9 key interfaces of collection framework. Okay, so these are all interview point of questions. I am just giving you the questions as well as answers, so that you can understand like how you can portray and how you can answer those questions. Okay, these are the different 9 key interfaces which are inside our collection framework, and rest all are implementation classes. Okay, inside each implementation classes we have different methods which we will use. Okay, so one by one I will give the definition of each this key interface, so that you can understand. Right now you are not able to understand like what is collection, what is list, what is queue, what is set, what is map, right? Like Okay. it's like Yeah. it's like entire new topic for you, so you are not able to like understand or relate like what all these things are. But once I will give you the definition, then I will give you the examples, then you can understand. And these, especially this list, set, and map, are like highly required for the automation. Okay, so we Okay. will Okay. we will like do complete hands on these, especially on these interfaces, like the implementation classes. We will try to utilize those implementation classes, some of the reusable methods, so that you can get some idea. For today we will target this one, array list. Okay, Okay. and similarly in like other sessions we will try to cover this linked list, then we will like try at least one example for this queue, then for set, and then we will move on the map side, as well as the differences between, suppose here might be interviewer will ask difference between array list and linked list. Similarly might be interviewer can ask difference between array versus set. Okay, this hash set versus linked hash set, similarly map, and this linked hash map. Okay, so these are all the interview point of questions, like might be Okay. interviewer can ask. So I will tell you each and every interview point of questions as well as the implementation part. Now Okay. the first interface, collection. Okay, one by one we will discuss. So first one is collection, the basic interface of the collection framework. Correct, this is the basic one. Correct, this is the starting point. Yeah.
basic interface of the collections framework is the collection interface, which is the root interface of all the collections in the API. Correct? It is the root, because after that we have different interfaces and different implementation classes. If we want to represent a group of individual objects as a single entity, then we should go for collection. मैंने कहा था कि collection क्या होता है, एक group होता है. Correct? So similar चीज यहाँ पे mention है. If we want to represent a group of individual objects as a single entity, then we should go for collection. It provides some common methods to implement like by all subclasses. Suppose it has some of the methods and it is an interface, and this is the array list. Array list is the implementation class. It means all the implementation class of this interface will utilize those methods. Correct? Okay. So in this way you can understand, like we have so many methods available in the collection framework. Next one is the list interface. The list interface extends collection interface. Correct? यहाँ पे हम extend ही कर रहे हैं, implement नहीं कर रहे हैं. Correct? Next, the list represents index based order. यहाँ पे इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ऐड होता है. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे वो इंडेक्स बेस पे ऐड होगा, जैसे हमारा एरे में होता था 0 1 2 3. ओके, द लिस्ट रिप्रेजेंट्स index based order collection of the object. The elements contains in the list are ordered and can be inserted or accessed or searched based on their index. जैसा मैंने कहा कि अगर मुझे ऐड करना है किसी भी एक, सपोज एक मेरा लिस्ट इंटरफेस है, अब उसके अंदर जो भी चीजें ऐड होंगी वो सारी की सारी इंडेक्स बेस पे होंगी. अगर मुझे फेच करना है वो भी इंडेक्स बेस पे ही करूंगा. ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा लिस्ट होती है, लिस्ट में हमारा डुप्लीकेसी अलाउड होती है. इट मींस अगर मैंने एक अपना लिस्ट बनाई, लिस्ट में मैंने सपोज रवि रखा और एक और रवि मैंने रख दिया, तो इन अ सिंगल लिस्ट 2 रवि कैन बी देयर. ओके, यस, नॉट एन इशू ऑन दैट. I will give like detailed example, but first of all we will cover all the definition part. Okay, next one is the set. लिस्ट में हमने क्या देखा, लिस्ट हमारा इंडेक्स बेस था, पहला पॉइंट. लिस्ट में हम डुप्लीकेट मेथड ऐड कर सकते थे, ये हमारा सेकंड पॉइंट था. लिस्ट में जितनी भी हम चाहे इंसर्शन हो, चाहे हम सर्चिंग करें या हम फेचिंग करें, सब कुछ इंडेक्स बेस पे हो रही थी. ये 3 पॉइंटर्स आप एज अ लिस्ट के लिए आप अभी माइंड में रख लो, बिकॉज इट विल गिव यू द आंसर लिस्ट वर्सेस सेट के लिए. करेक्ट? सेट में हम बात करते हैं सेट इंटरफेस. सेट इंटरफेस एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस. सेम है, क्योंकि कलेक्शन हमारा रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी हमारे इंटरफेसेस आएंगे वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड करेंगे ही कलेक्शन को. एंड रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन दैट डज नॉट कंटेन्स एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स. यानी जो चीज हम यहाँ पे लिस्ट में बात कर रहे थे, लिस्ट में क्या था, डुप्लीकेसी अलाउड थी, बट सेट में यूनिकनेस होती है. सेट में हम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते. ओके, इट कैन ओनली हैव वन नल एलिमेंट. इवन अगर हम इसमें नल भी ऐड करा रहे हैं तो एक ही नल वैल्यू स्टोर होगी, नॉट लाइक मल्टीपल नल, बिकॉज इट विल अगेन क्रिएट डुप्लीकेसी. ओके, right. एंड सेट डज नॉट possess इंसर्शन ऑर्डर. इंसर्शन ऑर्डर यहाँ पे नहीं होता. अगर मैं अभी इनके डिफरेंसेस की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन, तो पहला पॉइंटर, लिस्ट में इंडेक्स जो भी होता है, इंडेक्स के बेसिस पे सारी चीजें होती हैं. ठीक है? और हमारा अगर मैं बात करूं डुप्लीकेसी होती है. अगर मैं सेट की बात करूं, सेट में यूनिकनेस होती है. एटलीस्ट 1 हम नल वैल्यू इसमें स्टोर करा सकते हैं. सेट में हम इंसर्शन ऑर्डर नहीं प्रिजर्व करते हैं. इंसर्शन ऑर्डर नहीं प्रिजर्व कर रहे हैं, इट मींस यहाँ पे इंडेक्स का कोई भी लॉजिक नहीं होगा. करेक्ट? Okay. यस. सो हमने ये एक बेसिक डिफरेंस अभी आइडेंटिफाई किया बिटवीन लिस्ट एंड सेट. नेक्स्ट इज सॉर्टेड सेट इंटरफेस. मैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रहा हूं. पहले हमने कलेक्शन कवर किया, फिर हमने लिस्ट कवर किया, अभी हम सेट हमने कवर किया था, बिकॉज मुझे लिस्ट और सेट का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करना था, बिकॉज फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन. नेक्स्ट हम कवर कर रहे हैं सॉर्टेड, देन दिस नेविगेबल. सो सॉर्टेड सेट क्या है? चाइल्ड इंटरफेस ऑफ सेट है. करेक्ट है? अब सेट में हमारी जितनी क्वालिटीज होंगी वो सारी की सारी क्वालिटीज सॉर्टेड सेट में भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है. करेक्ट? बस इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा हमारी आ जाती है, इट इज
a set that holds the element in natural sorting. It means ascending order में ये elements को store करता है. अगर मुझे अपने elements को store कराना है ascending order में with uniqueness without maintaining the insertion order, then we can go for this sorted set interface. Correct? Okay. अगर मैं यहाँ sorted set की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं इसके set के भी जो हमारे दो pointers थे उनको consider करते हुए चल रहा हूँ. ठीक है? Because this is a child interface of set. तो अगर set में हमारे पास कुछ जो भी feasibilities हैं या कोई flexibilities हमें या facilities दी गई हैं वो सारी की सारी हम as a child sorted set में भी use कर सकते हैं. Correct? Next one is navigable set. यहाँ पे अगर नेविगेबल सेट की बात करें ये जो है ये सब इंटरफेस है. जैसे सेट था सेट के अंदर सॉर्टेड था सॉर्टेड के अंदर है नेविगेबल. तो नेविगेबल इज अ सब इंटरफेस ऑफ द सॉर्टेड इंटरफेस. यानी इसके पास सारी क्वालिटीज होंगी सेट की भी होंगी सॉर्टेड सेट की भी होंगी और अपनी जो नेविगेबल सेट है उसकी तो खुद की तो होंगी राइट. सो यहाँ पे मेंशन भी है. सो इट इनहेरिट्स ऑल द सॉर्टेड सेट्स बिहेवियर. जितना बिहेवियर इसके पास होगा वो सारा का सारा बिहेवियर हमारे नेविगेबल सेट में भी होगा. अब अगर बात करें स्पेशल क्या है. स्पेशल यही है कि इसमें जो नेविगेबल आपके मेथड्स होते हैं स्पेशल मेथड्स हैं वो और ऐड ऑन हो जाते हैं. यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ सॉर्टिंग मिलती थी यहाँ हमें नेविगेशन के मेथड्स मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू रिट्रीव एन एलिमेंट दैट हायर देन और लेस देन अ गिवन वैल्यू, इफ यू वांट सच काइंड ऑफ नेविगेशन, इन दैट केस हमारे जो भी नेविगेबल सेट में हमारे मेथड्स रीयूजेबल मेथड्स होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. कौन से वो मेथड्स हैं कैसे यूज करेंगे इनको हम आगे वन बाय वन इन डेप्थ में देखेंगे. बट अभी क्या है हम ये चीजें देखते जा रहे हैं कि किस इंटरफेस में क्या हम इम्प्लीमेंट, अगर मैं बात करूं उसमें क्या अवेलेबल है या क्या स्पेशल चीज है उसमें उसकी बात कर रहे हैं. नेविगेबल सेट जो होता है कांट हैव नल एलिमेंट्स. ओके. अगर आपको याद हो यहाँ पे मैंने सेट में बोला था यहाँ पे एटलीस्ट वन नल होता है राइट. बट ये स्पेशलिटी नेविगेबल की है यहाँ पे नल नहीं होता. इट डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट एलिमेंट. तो वो तो हमारा सेट का भी पार्ट है कि सेट में डुप्लीकेसी नहीं होती है. करेक्ट. इट कैन बी ट्राइवर्स एंड एक्सेस इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे हम असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ही हैंडल कर सकते हैं. करेक्ट. तो ये हमारा जो पॉइंटर्स थे डिफरेंट पॉइंटर्स थे वो थे नेविगेबल सेट के. अब इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर मुझे अचीव करना है सिर्फ यूनिकनेस अचीव करनी है कहीं पे, या मैं बात करूं मुझे कुछ एलिमेंट्स यूज अपने स्टोर कराने हैं जहां डुप्लीकेसी ना हो जहां मैं इंसर्शन ऑर्डर ना मेंटेन करूं, इन दैट केस आई विल गो फॉर सेट. बट अगर मुझे उनको असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कराना है इन दैट केस मैं सॉर्टेड सेट के थ्रू जाऊंगा. अगर मुझे कुछ नेविगेशंस करने हैं राइट लेफ्ट और राइट की बात करूं या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करने की बात करूं, यहाँ जैसे लिखा हुआ है ट्राइवर्स एंड एक्सेस आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग, सो इन दैट केस वी विल गो फॉर नेविगेबल सेट इंटरफेस. तो एक आइडिया मिल गया कि आखिरकार हमारे पास अगर एक कलेक्शन फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क में हमारे पास डिफरेंट इंटरफेसेस हैं तो कब किसको यूटिलाइज करना है. करेक्ट. Right. Next one So is one thing. yes. One thing in this, can you in the navigable set interface, it is saying like it doesn't can't have null element, but it is it is extending from the upper. Correct. From the set and From this the sorted set, right? So ये एक स्पेशलिटी एक स्पेशल पॉइंट है आपका कि नेविगेबल अगर हम नेविगेबल सेट की बात करें तो उसमें नल भी नहीं स्टोर होता. तो इट मींस अगर हमें कहीं पे ऐसा कॉन्सेप्ट ऐड करना है जहां हम नल भी नहीं स्टोर करना चाहते, ठीक है, इन दैट केस हम अपने नेविगेबल सेट के लिए जाएंगे. ओके. अब अगर क्यू की बात करें क्यू इंटरफेस, तो क्यू इंटरफेस एक्सटेंड्स कलेक्शन. ये तो सब में जितने भी हम बात कर रहे हैं सब में ही हमारा एक्सटेंड कर रहा है. ठीक है. अब अगर क्यू को बेसिक फंडे में बात करें अभी डेफिनेशन में नहीं देखते हैं. अगर क्यू को बात करें तो क्यू क्या होती है एक लाइन है राइट. अगर हम अपने ऑफिस यस आप कुछ बोल रहे थे रवि. No, sorry. ओके. सो क्यू की अगर मैं बात करूं एक बेसिक एग्जांपल के साथ, तो अगर ऑफिस में देखें जब हम पंच इन करते हैं एक क्यू लग जाती है. करेक्ट. अगर सुपरमार्केट की बात करें वहां पे भी क्यू लग जाती है. करेक्ट. तो क्यू का क्या, अगर मैं बात करूं कोई भी नया एलिमेंट अगर ऐड होता है तो वो
बैक पे ऐड होता है एट द एंड, राइट, एंड जो भी एंट्री करता है वो फ्रंट से एंट्री कर रहा है हमारा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी क्यू में सिमिलर कॉन्सेप्ट ऐड है। क्यू पे क्या है, क्यू इंटरफेस एक्सटेंड collection interface and represents a collection that is usually ordered by FIFO. FIFO means first in first out, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है। जैसे ऑफिसेज में अगर जो भी पहले आया था टाइम के अकॉर्डिंग, वो अपने टाइम जब उसका ओवर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चला गया। अ क्यू इज एन ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस, यहाँ पे होमोजीनियस ग्रुप होते हैं ऑफ एलिमेंट्स इन विच न्यू एलिमेंट आर एडेड। मैंने जैसे बताया था क्यू का फंडा ही क्या होता है कि क्यू में जब भी कोई नया एलिमेंट ऐड होता है एट द एंड पे होता है, एंड एलिमेंट्स अगर एलिमेंट को रिमूव करना है तो फ्रंट से रिमूव होता है, ओके। सो अगर मैं इंटरफेस की बात करूं, क्यू इंटरफेस की बात करूं, तो हमें ये इंटरफेस ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर मुझे कोई भी नई चीज अपनी ऐड करनी है तो वो ऑलवेज एट द एंड ऐड होगी, और जब भी मैं रिमूवल करूंगा या रिमूव करूंगा उसे अपने कलेक्शन से, तो फ्रॉम द टॉप होगा या फ्रॉम द फ्रंट होगा, जो भी पहला होगा हमारे पास, ठीक है। अभी अगर मैं रिमूव की बात करूं, हमारे पास रिमूव के मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं। हमारे पास इंडेक्स बेस भी होता है कि हम किस पर्टिकुलर एक इंडेक्स को देके हम रिमूव करा सकते हैं। बट ये क्यू में स्पेशलिटी ये है कि ये ऑलवेज, आपका सपोज एक कलेक्शन है, उसमें आपके 4 एलिमेंट्स स्टोर हैं, 1 2 3 4। अब आप अगर रिमूव करोगे तो ऑलवेज वो रिमूव 1 को करेगा। अब जब 1 रिमूव हो गया देन 2 को रिमूव करेगा। इन सिमिलर वे अगर आप ऐड करते हो तो एट द बैक वो हमेशा बैक पे ही आपका ऐड करता रहेगा क्यू में, ठीक है। तो ये हो गई क्यू इंटरफेस के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज इंटरफेस जो हमारा है वो है मैप। अभी हमने यहाँ पे बात कर ली कलेक्शन की, लिस्ट की, सेट की, सॉर्टेड, नेविगेबल और क्यू की, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मैप की, ठीक है। मैप, देन सॉर्टेड मैप, देन हमारे पास नेविगेबल मैप। अगर देखोगे आप सेट के कंपैरिजन में, हमारे जो यहाँ सॉर्टेड सेट है तो यहाँ पे सॉर्टेड मैप है, यहाँ नेविगेबल सेट है तो यहाँ नेविगेबल मैप है। ऑलमोस्ट सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन होगी, बट एक बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। मैप क्या बोलता है, मैप इंटरफेस इज नॉट इनहेरिटेड बाय कलेक्शन इंटरफेस। ये हमारा जो कलेक्शन इंटरफेस है ये उसका पार्ट नहीं होता, ये सेपरेट है, बट इट इज अ टोटल पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, ओके। इट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स एंड रिट्रीव एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। यही इसका स्पेशल पॉइंट है और यही इसको डिफरेंट करता है कि यहाँ पे हमारा की वैल्यू के फॉर्म में चीजें स्टोर होती हैं। जैसे हमने अभी तक जितनी भी चीजें स्टोर करी उसको हमने डायरेक्ट, अगर लिस्ट मैंने बनाई, लिस्ट में 1 2 3 4 डाल दिया, वो स्टोर हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है, की और वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। सपोज अगर मैं बात करूं क्यू, इसमें की और वैल्यू के फॉर्मेट में बात करने के लिए, सपोज की मैंने 1 लिखी, 1 अगर स्टूडेंट 1 है, 1 के आगे मैंने लिख दिया रवि, 2 के आगे मैंने लिख दिया राजेश। सो अगर मैं की बेसिस पे वैल्यूज निकालूंगा तो 1 की वैल्यू जब भी मैं पूछूंगा तो मुझे रवि ही मिलेगी, इन सिमिलर वे 2 में मुझे राजेश की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो पर्टिकुलर मैप इंटरफेस है, ये वैल्यूज जो भी स्टोर करता है वो की वैल्यू पेयर में ही करेगा, हमेशा पेयरिंग में करता है। इट डजंट अलाउ टू स्टोर द डुप्लीकेट कीज बट डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। क्यों? क्योंकि अगर कीज डुप्लीकेट हो गई, आप खुद सोचो, अगर की डुप्लीकेट हो गई तो फिर जब हम कॉल करेंगे तो आउटपुट कैसे आएगा, करेक्ट। अगर मैंने 1 लिख दिया तो उसमें आउटपुट क्या आना चाहिए पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे की लेवल पे यूनिकनेस होती है, बट वैल्यू लेवल पे आप डुप्लीकेसी मेंटेन कर सकते हो, ओके। बिकॉज अगर मैं काइंड ऑफ इंडेक्स ओनली ना, करेक्ट अगर आप मैं एक क्लास का एग्जांपल दूं, एक क्लास है उसमें स्टूडेंट है, स्टूडेंट के रोल नंबर है और उनके नाम है, तो हर एक रोल नंबर एक यूनिक रोल नंबर होता है और उसका एक एसोसिएटेड नेम होता है। बट माइट बी सपोज रोल नंबर 5 भी रवि हो सकता है और रोल नंबर 50 भी रवि हो सकता है, ठीक है। एक नया स्टूडेंट आया जो कि ऐड हुआ लास्ट में, करेक्ट। तो अगर मैं 5 की बात करूं, उसकी की में भी रवि स्टोर है और 50 में भी रवि स्टोर है। बट अगर मैं की और वैल्यू की बात करता हूं तो मेरे पास एक की 5 है, एक की 50 है, करेक्ट। 2 डिफरेंट कीज आर देयर बट इट हैज सेम वैल्यू, करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं की वैल्यू की हमेशा इंटीजर ही होगा, ओके। यहाँ पे आपका स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम हमेशा इंटीजर वैल्यूज की ही बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं बोलूं श्रीकांत को की बना दूं, ठीक है, श्रीकांत एज अ की मैंने बना दिया और आउटपुट अगर मैं उसकी वैल्यू बोल दूं तो मैं अपनी ऑफिस की जो यूनिक आईडी है मेरी, ठीक है, सपोज लेट सपोज TTP1
ठीक है, TTP1 ये मेरी एक आईडी है, तो जब भी मैं श्रीकांत की का डेटा अगर फेच करूंगा तो उसकी वैल्यू मुझे TTP1 मिलेगी, करेक्ट। सो इट्स नॉट लाइक कि हम इंटीजर वैल्यू ही यहाँ पे सेट करेंगे। अभी हम बात करेंगे उस चीज पे भी, कैसे हमारे ये जो भी कलेक्शंस हैं हम कैसे मेंटेन करते हैं, अभी कैसे क्रिएट करना है और कैसे हम आइटरेट करेंगे, सारी चीजें वन बाय वन सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आज के सेशन में हमारे पास थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे कलेक्शन में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है सभी प्रोफेशनल्स के लिए, वो ये होता है कि कंटेंट कहाँ से लेके आए, कितना कंटेंट पढ़ें और कितना यूजफुल है हमारे लिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उतना कंटेंट आपके लिए हो जितना यूजफुल है और जो आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करे। ओके, नेक्स्ट वन इज मैप। अगर मैंने पढ़ लिया तो सॉर्टेड मैप है। सॉर्टेड मैप की बात करें तो सिमिलर टू जो हमने यहाँ पे सॉर्टेड सेट पढ़ा था, सिमिलर होगा यहाँ पे। दिस इंटरफेस रिप्रेजेंट्स अ मैप whose elements are stored in natural ordering, means ascending order, करेक्ट। तो यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ की वैल्यू पेयर में स्टोर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आपकी सॉर्टिंग होगी वो कीज के बेसिस पे हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट नेविगेबल मैप। वहां पे हमने क्या किया था, अगर नेविगेबल की बात करें तो यहाँ पे हमें नेविगेशन मेथड्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, सिमिलर वे में हमें यहाँ पे भी मिल जाते हैं। इट इज अ मैप दैट एक्सटेंड सॉर्टेड मैप, इट मींस चाइल्ड इंटरफेस ऑफ सॉर्टेड मैप, इट इज अ चाइल्ड interface of sorted map. It provides navigational methods. For example, if you want to retrieve a key element that is higher, मैंने जैसे बोला ना कि हमारा यहाँ पे जो भी चीजें हम फेच करेंगे वो की के बेसिस पे करेंगे, की इज इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होगा, ठीक है। So if you want to retrieve a key element that is higher than or less than a given key, if you want such kind of navigation, in that case we will go for this navigable map. Okay, so अगर मैं डिफरेंस मैप इस वाले नेविगेबल सेट की और मैप की बात करूं तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, हमारे मैप में की बेसिस पे सारी जो भी हम फेचिंग कर रहे हैं या रिट्रीव मैं बोलूं जो भी हम कर रहे हैं वो सारा की के बेस पे कर रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे चीजें की वैल्यू के फॉर्म में होती हैं। और अगर मैं नॉर्मल बात करूं सेट की तो वहां सिर्फ वैल्यूज स्टोर होती हैं, वहां की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, करेक्ट। राइट। तो अभी आपको अगर मैं इन 9 इंटरफेसेस की बात करूं तो 9 इंटरफेसेस में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि लिस्ट में हमने क्या, हम लिस्ट में कर रहे हैं, क्या हम सेट में कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि लिस्ट में क्या चीजें होती हैं, सेट में क्या होती हैं, मैप में क्या है, क्यू में क्या है। ये आपके पिलर्स हैं, दीज आर 4 पिलर्स। ओके, तो ये पिलर्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता चल गई, ये बेसिक चीजें पता चल गई, पहला तो आप पहले क्लियर कर लोगे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आप डिफरेंसेस इजीली क्लियर कर लोगे। सेकंड, जब हम इनकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस पे काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ पाओगे कि अच्छा लिस्ट की बात है तो लिस्ट में ये चीजें मेंटेन होती हैं, तो ये हो रही हैं या नहीं, वो सारी चीजें हम अपनी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस में वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो लिस्ट हमने देखा, लिस्ट में हमें पता चला कि इंडेक्स बेस होता है, डुप्लीकेसी अलाउड है। सेट में हमने बात करी, यहाँ यूनिकनेस होती है, इंसर्शन ऑर्डर हम प्रिजर्व नहीं करते हैं। अगर उसी में आगे सॉर्टेड में बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर हमें मिल जाता है। नेविगेबल की बात करें तो हमें नेविगेशनल मेथड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर सेट तक हम सिर्फ डिस्कस करते हैं तो सेट में हम वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, जैसे ही हम मैप में मूव करते हैं मैप में हमारी चीजें की वैल्यू में आ जाती हैं। अब जितनी भी हमारी जो भी रिट्रीवल है वो की बेसिस पे होती है मैप के केसेस में। क्यू की बात करें तो क्यू एक नॉर्मल क्यू टर्म में अगर हम डिस्कस करें तो एक लाइन है जहाँ पे जब भी हम कोई एडिशन करेंगे वो एट द एंड करेंगे, और जब भी हम कोई भी चीज रिमूव करेंगे तो फ्रॉम द फ्रंट करेंगे। ओके, तो ये बेसिक आपको 9 इंटरफेसेस के बारे में आइडिया मिल गया। आज से पहले कभी पढ़ा था इन इंटरफेसेस के बारे में या कलेक्शन के बारे में? नो। ओके, ठीक है। अभी आई कैन अंडरस्टैंड आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा होगा रिलेट करना, बट अभी जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल में ज्यादा क्लियर होगा। आज मैंने एक ही एग्जांपल प्रिपेयर किया है और उस एग्जांपल में मैंने डिफरेंट मेथड्स जो भी हम बार बार बात कर रहे हैं, टन्स ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल, रेडीमेड मेथड्स आर अवेलेबल, तो वो कौन से मेथड्स हैं, कैसे यूज होंगे, वो सारी चीजें मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ओके, तो हम मैं क्यू हाँ, का नहीं कर रहे, क्यू और किसका? क्यू हाँ, क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू ये डिस्कस नहीं करना अभी। नहीं, क्यू हमने डिस्कस किया, यहाँ पे क्यू इंटरफेस डिस्कस किया ना। ओके, अभी हम इनकी प्रायोरिटी क्यू, ये एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, हम वन बाय वन एक एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास को देखेंगे,
ठीक है, बिकॉज Okay. इट आई डोंट वांट कि मैं सारी चीजें एक बार में आपको सिखा दूं, ठीक है, मैं वन बाय वन एक एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास को लूंगा, उसके इन डेप्थ पे जाऊंगा, कैसे काम करा जाता है, कैसे रिट्रीवल, कैसे एडिशन, सब कुछ इन डिटेल बताऊंगा। आज के लिए मैं टारगेट रख रहा हूँ एरे लिस्ट का, बिकॉज आज हम मोर ओवर ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज का जो भी सेशन है उसको देख रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क का, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए, बेसिक ओवरव्यू मिल जाए कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है और कितने इंपॉर्टेंट की जो हमारे इंटरफेसेस हैं कैसे उनमें डिफरेंसेस हैं, क्या चेंजेस हैं आपस में, वो सारी चीजें क्या हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं, उन सब चीजों पे बात करेंगे। In further sessions we will try to cover this linked list, then priority queue, this hash set and like linked hash set। so एक बार आप अगर एक को पिकअप कर लोगे डेफिनेटली आप सारे पिकअप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, बस एक को पिकअप करने की बात है। इसीलिए मेरा फोकस रहेगा कि आज के सेशन में हम एक को अच्छे से पिकअप कर लें और समझ जाएं कि हमें कैसे करना है। अगर आज हमने एरे लिस्ट को समझ लिया तो हमारे लिए नेक्स्ट सेशन में लिंक लिस्ट कुछ भी नहीं होगा, प्रायोरिटी क्यू आप बिल्कुल ही इजिली रिलेट कर पाओगे चीजों को। ओके क्योंकि ये बिल्कुल ही आपने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है ये, ठीक है। Okay. Okay. ओके सो मेथड्स की बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस बात करी। अब मैं कुछ यहाँ पे जो हमारे अवेलेबल मेथड्स हैं कलेक्शन इंटरफेस में उनका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, सो दैट यू कैन गेट सम आइडिया कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके सो फर्स्ट वन इज ऐड। जब भी हम कभी अपना जो भी कलेक्शन बनाएंगे तो हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है ऐड। दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड और इंसर्ट और इन इंसर्ट एन एलिमेंट इन द कलेक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे ये सारे के सारे मेथड्स रीयूजेबल हैं, ठीक है, तो हमें ये कैसे हेल्प करेंगे हम आगे देखेंगे, बट अभी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो देख रहे हैं हम। तो पहला है ऐड। ऐड से क्या है, हम कोई भी एक अपना एलिमेंट अगर ऐड करना है अपने कलेक्शन में वो हमने ऐड कर लिया। अगर ऐड ऑल की बात करें, दिस मेथड ऐड अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स टू अ कलेक्शन। इसका क्या मतलब है, वहां पे हमने सिंगल एलिमेंट ऐड किया था, यहाँ पे हम कलेक्शन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक कलेक्शन के अंदर एक और कलेक्शन ऐड कर दिया। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट्स आर एडेड, अदरवाइज फॉल्स। रिमूव, अगर मुझे रिमूव करना है पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को अपने कलेक्शन से, इन दैट केस हम यूज करते हैं रिमूव। रिटर्न ट्रू करेगा इफ एलिमेंट वाज रिमूव्ड, अदरवाइज फॉल्स। रिमूव ऑल, अगर मुझे एंटायर कलेक्शन ही कोई एक कलेक्शन है जो रिमूव करना है, इन दैट केस रिमूव ऑल हम यूज करते हैं। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल एलिमेंट्स आर रिमूव्ड, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। ओके ये हमारे चार मेथड यहाँ पे हो गए। आगे मेथड देखते हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा हवा में लग रही होंगी क्योंकि सारी चीजें नई है, सारे मेथड्स नए हैं, बट आई विल गिव यू एश्योरेंस कि एक बार आप जैसे ही इसके एग्जांपल्स देखोगे आप बहुत जल्दी रिलेट करोगे। मैं एग्जांपल पे तुरंत इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेथड्स का मतलब क्या है, उन मेथड्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, सो दैट आपको वो भी चीजों की आइडिया रहे। अदरवाइज मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे लेके आपको जाऊं और डायरेक्ट वो एग्जांपल का आउटपुट दिखा दूं, आप समझ जाओगे, लेकिन क्या ट्रू कब आना चाहिए, उसका आउटपुट फॉल्स कब आना चाहिए, वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू में Right. पूछा जा सकता है, करेक्ट, या उसका रिटर्न टाइप क्या है, सो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। So next method is a contains. It checks that element is present or not in the collection. Method returns true if element is present, otherwise false. अगर कंटेन्स की बात करें, कंटेन्स ने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को देखा था। कंटेन्स ऑल की बात करें तो यहाँ कलेक्शन, अगर एक एंटायर कलेक्शन को मुझे चेक करना है कि वो अवेलेबल है कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन इनसाइड कलेक्शन अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, इन दैट केस हम कंटेन्स ऑल यूज करेंगे। दिस मेथड चेक्स दैट स्पेसिफिक or specified collection of elements are present or not. It returns true if calling collection contains all the specified elements, otherwise return false. Empty का मतलब सिंपल ही है, अगर मेरा कलेक्शन एम्प्टी है इन दैट केस ट्रू, अदरवाइज जो भी होगा वो फॉल्स आ जाएगा। साइज की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हमारे कलेक्शन में प्रेजेंट है। अगर मुझे एंटायर कलेक्शन को क्लीन कर देना है, इन दैट केस हम क्लियर यूज कर सकते हैं, रिमूव्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द कलेक्शन। इक्वल्स की बात करें, इट चेक्स फॉर द इक्वलिटी विद अनदर ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा जैसे वहां पे था, अगर याद होगा आपको, हम स्ट्रिंग में
इक्वल्स यूज करते थे। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे अगर मुझे ऑब्जेक्ट लेवल पे कंपैरिजन करना है, इन दैट केस हम यहाँ पे ये मेथड यूज कर सकते हैं, इक्वल्स। int hash code, it returns the hash code number of the collection. Iterator returns an iterator for the invoking collection. Retain all, this method is used to remove all the elements from the collection except the specified collection. अगर मैं बात करूं यहाँ पे remove की, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, ये था remove and remove all, ये भी वही काम कर रहा था कि हमें remove करा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो हम एलिमेंट देते थे, it removes a specific element, correct, या it removes a specific collection। लेकिन retain की बात करें तो रिटेन क्या करता है, जो कलेक्शन हम यहाँ प्रोवाइड करें उस कलेक्शन के अलावा बाकी सारी चीजें रिमूव कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू array, returns an array that contains all the elements stored in the invoking collection. The array elements are copies of collection element. टू array, यहाँ पे हमने कुछ भी पास नहीं किया था, यहाँ पे हम टू array के अंदर भी array पास कर रहे हैं। अगर in that case returns an array contains only those collection elements whose type matches with the specified array. Okay, ये सारी definition हो गई, बहुत सारे methods हो गए, अभी 15 methods ही हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ 15 methods हैं आपके, और ये सिर्फ collection interface के हैं। ठीक है, अगर मैं अभी आगे जाऊंगा, यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पुट अप होता है। ये जितने अभी हमने मेथड देखे ये सारे हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे, एटलीस्ट वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ देम। ओके, जो नहीं मैंने कवर किए हैं वो आप ट्राई करना, और आप उनको देखना कि कैसे यूज हो रहे हैं, और अगर नहीं कर पाते हो आप, तो आप मुझे रीच आउट करो, मैं आपको उसमें हेल्प करता हूँ। ठीक है। ओके। अब एक जो क्वेश्चन पुट अप होता है, अभी हमने सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन है कलेक्शन वर्सेस कलेक्शंस। ठीक है, ये कंफ्यूज करता है। यहाँ पे आपसे इंटरव्यू ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज कलेक्शन और व्हाट इज कलेक्शंस। अगर आपको इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता, डेफिनेटली आप गलत आंसर करोगे। ओके, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक presentation kind of इसको भी ऐड किया, so that you can get some idea about collection versus collections. So collection and collections both are different things, are not the same thing. Okay, collection is a interface जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, where you group object into a single unit। जो हमारा पहला इंटरफेस था वो कलेक्शन ही इंटरफेस था, बट कलेक्शंस जो है वो एक यूटिलिटी क्लास है that has some set of operations you perform on collection। यानी एक यूटिलिटी क्लास है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कलेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्शन जो होता है, कलेक्शन में हमारे कोई भी मेथड जो होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं। ठीक है, बट कलेक्शन में सारे के सारे मेथड स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब अगर मैं कॉमन मेथड्स की बात करूं कलेक्शंस के, ठीक है, तो कलेक्शंस के हमारे ये कॉमन मेथड्स हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे कलेक्शन डॉट बाइनरी सर्च, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, डॉट मैक्स, डॉट मिन, रिवर्स, कॉपी। ये भी मैंने एक एग्जांपल में यूज किए हुए हैं, सो दैट यू कैन गेट सम आइडिया कि ये कैसे यूज हो रहे हैं और इनका आउटपुट कैसा आ रहा है। जो हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, क्या सच में वो ऐसे ही यूज हो रहे हैं या हम ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। सपोज सॉर्ट की बात करें, परफॉर्म सॉर्टिंग ऑपरेशन ऑन द स्पेसिफाइड कलेक्शन। अगर मैं मैक्स की बात करूं, रिटर्न्स द मैक्सिमम एलिमेंट। ओके, मिनिमम। अब अगर आप इनसे खुद आप समझ रहे होगे ये कहाँ पे हम यूज करेंगे। सपोज एक ऐसा मैंने कलेक्शन बनाया जहां मैंने वैल्यूज इंटीजर फॉर्म में स्टोर कर रखी हैं, ठीक है, रोल नंबर हुआ या सैलरी हुई, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम सैलरी अगर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, कलेक्शन डॉट मैक्स, उससे मुझे मैक्सिमम जो भी उस कलेक्शन में सैलरी होगी वो निकल के आ जाएगी। इन अ सिमिलर वे अगर मुझे मिनिमम निकालनी है तो मैं मिनिमम निकाल सकता हूँ। अगर आपसे कोई बोलता है कि एक कलेक्शन को रिवर्स करके दिखाओ तो मैं इस मेथड को यूज कर लूंगा। ठीक है, सो आपके पास आप ये समझो कि 15 वो थे और यहाँ पे और आपको मिल गए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे। अभी तो हमने सिर्फ इंटरफेस लेवल पे बात करी, यूटिलिटी क्लास जो हमारी कलेक्शंस है इस पे बात करी। अभी जो हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास की बात करेंगे, एग्जैक्टली जो हमारी ये क्लासेस हैं, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, इनके अपने भी मेथड्स हैं, वो भी हम यूटिलाइज करेंगे। सो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा रेडीमेड मेथड्स अवेलेबल हैं। करेक्ट, राइट। अब आगे एग्जांपल में मूव करने से पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जावा रैपर क्लासेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ था डिफरेंस की
हमारा एरे जो होता है उसमें प्रिमिटिव एज वेल एज ऑब्जेक्ट वो दोनों को हैंडल करता है, बट जो हमारा कलेक्शन होता है वो सिर्फ डील करता है ऑब्जेक्ट्स को, करेक्ट। अब हमारा अगर मैं बात करूं INT या CHAR, ठीक है, या डबल DOUBLE डबल, ये सारी चीजें जो स्मॉल में हम जो भी लिखते थे, यहाँ पे जो भी मेंशन है, ये सारी की सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप थी, राइट, जो हमने पहले पढ़ी हुई है, बहुत पहले पढ़ी हुई है, करेक्ट। अगर हमें डील करना है कलेक्शन में तो हम इनके थ्रू नहीं डील कर सकते, इन दैट केस हमें रैपर क्लास चाहिए होती है, ठीक है। रैपर क्लास है क्या, बहुत ही छोटा सा है और इसमें हम कुछ नहीं करते, ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं हमारे पास, बट ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू और पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जाता है व्हाट आर जावा रैपर क्लासेस, ओके, क्योंकि हम कलेक्शन में इन्हीं को यूज करेंगे अभी, ठीक है। सो रैपर क्लासेस प्रोवाइड्स अ वे टू यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमारे ये सारे इंट बुलियन डबल जो भी हैं, ये सारे के सारे प्रिमिटिव हैं, अब उन्हें अगर मुझे यूज करना है एज अ ऑब्जेक्ट, इन दैट केस हम रैपर क्लास के थ्रू हम उन्हें यूज कर सकते हैं। अब आप ये सोचो कि यार क्या हमें रैपर क्लास बनानी होगी या मुझे कुछ इंप्लीमेंटेशन अपनी साइड से करनी होगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जावा कंपाइलर कैन डायरेक्टली कन्वर्ट अ primitive types into corresponding objects and vice versa. It means वो प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट से आई मीन रैपर से वापस से प्रिमिटिव भी बना सकते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखते हैं, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग का क्या मतलब है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ primitive types to the object of their corresponding wrapper classes is known as auto boxing. अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इंट को इंटीजर में, लॉन्ग को लॉन्ग में, डबल को डबल में, आप देख रहे हो ये जो कन्वर्जन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका रैपर क्लास बन रही है आपकी, ठीक है, और इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपका आप मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है आपको इम्प्लीमेंट करोगे उसके बाद ही आप यूज कर पाओगे, ये ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग का मतलब सिंपल सा क्या है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंटीजर को कैरेक्टर में बदल देंगे, आप ये सोचो कि इंटीजर यहाँ पे है और यहाँ पे, हाँ, करस्पॉन्डिंग ही होना चाहिए उसके, ठीक है। तो वो होता है ऑटो बॉक्सिंग। अब अनबॉक्सिंग क्या होता है, इट्स जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑटो बॉक्सिंग, ऑटोमेटिकली लाइक कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ रैपर क्लास, ये हमारे जो भी रैपर क्लास है, to its corresponding primitive type is known as unboxing. For example, conversion of integer to int, long to long और double to double, ये चीज हो गई। अभी हम एक बार इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, उसके बाद हम प्रोग्राम में देखेंगे जो हमने ये मेथड्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे एक एरे लिस्ट को, एरे लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन को, सो दैट आपको आइडिया मिल सके कलेक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आई कि हमने ये जावा जो रैपर क्लास है वो क्यों इंट्रोड्यूस करी या क्यों हमें रिक्वायर्ड है, ये समझ में आ गया। अगर कोई पूछे जावा रैपर क्लास क्यों चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमारा जो कलेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करता है और हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को उनको कन्वर्ट करना होता है ऑब्जेक्ट्स में, इन दैट केस हमारे रैपर क्लासेस यूज होती हैं। अब वहां पे क्या होता है, हमारा ऑटो बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है और अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ऑटो बॉक्सिंग में ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, और अनबॉक्सिंग में हमारा जो हमारा रैपर क्लास प्रिमिटिव, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया जावा रैपर क्लासेस, क्योंकि अभी हम जब आगे जितने भी इंटरफेसेस करेंगे, जहां पे भी काम करेंगे, अगर हम कैरेक्टर से डील करेंगे या इंटीजर से डील करेंगे, हम इस तरीके से मेंशन करेंगे। जैसे वहां पे इंट यूज करते थे या कैर यूज करते थे, यहाँ पे कैरेक्टर लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे, ओके, ठीक है। अब एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, मैंने ऑटो बॉक्सिंग का बनाया है। ऑटो बॉक्सिंग मींस ऑटोमेटिक कन्वर्जन, राइट, फ्रॉम प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल पहले ये मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, करेक्ट। कैर ch is equals to 8, int I is equals to 5, double d is equals to 5.59। कोई शक यहाँ तक कि ये प्रिमिटिव नहीं है? यहाँ पे करेक्ट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कैरेक्टर लिखा, इंटीजर लिखा, डबल लिखा, इनकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे स्टोर कराया, ठीक है।
मुझे ये चेक करना था कि क्या ये एज अ आउटपुट अगर मैं अभी AC या AI या AD अगर यहाँ लिखूं तो क्या ये आउटपुट देंगे, ठीक है, क्योंकि सिमिलर डेटा होना चाहिए, हमने यहाँ पे बात करी थी, राइट, करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास होनी चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये चीज चेक करने के लिए, यहाँ पे चेक करने के लिए मैंने क्या किया, CH जो हमारी वैल्यू थी उसको यहाँ पे AC में प्रोवाइड किया, जो यहाँ I की वैल्यू थी वो AI में करी, जो D की वैल्यू थी वो AD में करी, एंड देन SOPLN मैंने यूज किया और सबका आउटपुट यहाँ पे चेक किया, करेक्ट। सो इट मींस यहाँ पे मैंने कुछ भी अलग से अपने साइड से नहीं किया है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, करेक्ट। अगर मैं अभी यहाँ पे कैरेक्टर AC इज इक्वल टू यहाँ पे R दे दूं तो वहां पे R भी आउटपुट में प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये करने के लिए ट्राई किया कि क्या वो स्टोर कर भी पा रहा है या नहीं। अगर ये CH कैरेक्टर टाइप का होता ही ना तो ये यहाँ पे एरर दे देता, करेक्ट, मिसमैच डेटा टाइप, ओके, करेक्ट। सो यहाँ पे मैंने बस ये चीज शो करने की कोशिश करी है, ऑटो बॉक्सिंग ऑलरेडी इनबिल्ट हो रही है, बट यहाँ मैंने ये शोकेस करने की कोशिश करी कि कैरेक्टर आपके कैरेक्टर रैपर क्लास के साथ मैप हो रहा है, इंटीजर इंटीजर के साथ हो रहा है, और डबल जो है वो डबल के साथ हो रहा है, ओके। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूंगा आपको। अगर अनबॉक्सिंग की बात करें, ठीक है, अनबॉक्सिंग में हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जैसे हमारी इंटीजर वैल्यू है, मैंने कहा था ना कि इंटीजर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, करेक्ट, इंटीजर डबल मैंने लिख दिया, माई इंट ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा डेटा टाइप है, ये मेरी वैल्यू है, ठीक। सिमिलरली डबल माई डबल ये हो गया, कैरेक्टर माई कैरेक्टर और ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, माई इंट डॉट इंट वैल्यू डॉट डबल वैल्यू डॉट कैरेक्टर वैल्यू, ये जो मेथड्स हैं हमें ये यूज करने पड़ेंगे, तब हमें हमारी एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू मिल जाएगी, ओके। वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। सपोज आप बाइट के लिए चाहते हो, शॉर्ट के लिए चाहते हो, फ्लोट डबल बुलियन किसी के लिए भी चाहते हो, तो आपको ये इनबिल्ट मेथड्स हैं, और मैं बोलूँ रीयूजेबल रेडीमेड मेथड्स हैं जो आपको यूज करने होंगे, सो दैट आप अपने प्रिमिटिव वैल्यूज को निकाल सको, कन्वर्ट कर सको, ओके। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आप लिख दो माई इंट, क्या आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट आएगा, उसमें भी आएगा, बट आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे प्रिमिटिव फॉर्म में लाना है, करेक्ट। राइट, सो इन दैट केस हमें ये मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, हम इन्हें यूज कर सकते हैं। अब आप सोचो, अभी हमने 15 पढ़े थे, फिर वो मेथड्स थे और ये मेथड आ गए, अभी और मेथड आएंगे, कितने सारे होते जा रहे हैं हमारे पास मेथड। तो आप खुद सोच सकते हो कितना यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कलेक्शन कितना यूजफुल होता जा रहा है, ठीक है। हम अगर कोडिंग की बात करें, कोडिंग कम होती जा रही है, अगर हमें ये इन सब चीजों की नॉलेज है, रीयूजेबल मेथड्स की अगर हमें नॉलेज है, तो हमारा कोड भी छोटा होता जा रहा है, और हम एक्चुअल जगह जहां हमें लॉजिक सेट करना है या लॉजिक बनाना है वहां पे हम काम करेंगे, करेक्ट। right. So in auto boxing and unboxings, in auto boxings, it was different type of coding, right? It was very simple, like बस हाँ, हाँ, ये जो आपके लिए है, जो भी मैंने यहाँ अनबॉक्सिंग करी या आपका ऑटो बॉक्सिंग करी, ये मैं बस यहाँ पे ये शो करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा जो कलेक्शन है वो ऑब्जेक्ट पे डील करता है, ठीक है। तो कलेक्शन में अगर मुझे कुछ भी काम कराना होगा तो मुझे इस तरीके से लिखना होगा, कैरेक्टर या इंटीजर या डबल, ठीक है। okay, अब मेरा ऑब्जेक्टिव था आप उसे रिलेट कर पाओ कि आपका प्रिमिटिव और आपका जो रैपर है उस चीज को आप रिलेट कर पाओ, इसलिए मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है कि अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, कैरेक्टर AC इंटीजर AI डबल AD और ये वैल्यूज मैंने सपोज यहाँ पे AC में कोई वैल्यू दे दी, इंटीजर AI में कुछ वैल्यू दे दी, डबल में सपोज ये है ही नहीं, ये वाला पार्ट नहीं है, और आप आउटपुट में ट्राई कर रहे हो AC AI AD, क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। जनरली मैं 100% श्योर हूँ, मोस्ट ऑफ द पर्सन आउटपुट में बोल देते हैं कि कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि सबने सिर्फ यही पढ़ा है, इंटीजर कैरेक्टर डबल, इस तरीके से लोग ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। और इन दैट केस आप बोल देते हो कंपाइल टाइम एरर आएगी, बट कंपाइल टाइम एरर तो आती नहीं है,
और बस वहीं से आपका 1 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने इसीलिए यहाँ पे करके दिखाई हुई हैं कि आप देखो, खुद से ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी मैं एक इसका ऑटो बॉक्सिंग का एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यही सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, यहाँ ये जो हमारा कैरेक्टर है या इंटीजर है या डबल है, ठीक है, ये सारा का सारा आपका जो भी वैल्यूज हमने यहाँ प्रिमिटिव में स्टोर करी वो सारी की सारी यहाँ हम पास कर रहे हैं और आउटपुट यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, ओके, ये अभी मैं बस इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे इसमें अपने कलेक्शन में काम करेंगे तो बहुत जगह हम रैपर क्लास जो भी आपका इंटीजर है या कैरेक्टर है हम इस तरीके लिखेंगे। एट दैट टाइम माइट बी आपको कंफ्यूजन हो कि यार हम तो इंटीजर INT देखते थे या कैरेक्टर CHAR देखते थे, यहाँ पे तो कुछ और है। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है कलेक्शन में। ठीक है, ओके, फाइन। अभी एक बार इसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत रेयरली कोई कवर करता है या बहुत रेयरली कोई इनको टच करता है, इस वजह से इन पे ज्यादा आपको वो भी नहीं मिलेगा, कंटेंट भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा कि हाँ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है कहीं पे। इट्स जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस कि आपका एग्जैक्टली हमें कलेक्शन में चाहिए ये चीज। अब जनरली लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं आपको कलेक्शन का एग्जांपल दे सकता था, वहां पे आपको पता भी नहीं चलता, मैं बता देता, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो पूछा जाता है तो पता नहीं होता कि ये क्या है। ठीक है, उस टाइम पे आप बोलते हो कि मैंने पढ़ा था इसीलिए ऐसा मतलब मुझे मिला, तो वो एक गलत इंप्रेशन बनता है। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक बार इस चीज को भी करके देख लेते हैं जो मैंने बोली थी क्या सच है या नहीं। देख लेते हैं। करेक्ट, आउटपुट आ गया। ये आपके जो हमने रैपर यूज करे हुए हैं, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, आपका यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये भी इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, अब अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आपको पता नहीं होगा, बट अगर आपने ट्राई कर रखा है और एग्जैक्टली आपको पता है, डिफरेंस भी पता है कि हाँ ऑटो बॉक्सिंग क्या है या अनबॉक्सिंग क्या है, हम कहाँ पे यूज करते हैं रैपर क्लासेस को, इन दैट केस आप आंसर कर सकते हो। करेक्ट, आगे चले। yeah, ओके, सो एक बार फिर से कलेक्शन इंटरफेस को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, कलेक्शन इंटरफेस इज द रूट इंटरफेस ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। There is no direct implementation of this interface. However, it is implemented through its sub interfaces like list, set, queue। जो हमने अभी तक बात करी थी वही बात यहाँ पे हमने दोबारा से दोहरा दी कि यहाँ पे जो भी हमारे कलेक्शन होता है, कलेक्शन में हमारे मेन क्या है, लिस्ट, सेट, क्यू। अब उसके आगे अगर मैं जाऊं बात करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एरे लिस्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल द एरे लिस्ट क्लास इंप्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस विच इज अ सब इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। यानी कि कलेक्शन इंटरफेस जो था उसको एक्सटेंड किया था लिस्ट ने। अब लिस्ट को कौन इंप्लीमेंट करेगा, एरे लिस्ट करेगा। ठीक है, इन जावा लिस्ट इंटरफेस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन that allow us to store and access element sequentially। हमने बात करी थी लिस्ट के बारे में कि यहाँ इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहता है, डुप्लीकेसी रहती है। करेक्ट, इट एक्सटेंड्स द कलेक्शन इंटरफेस। सिंस लिस्ट इज एन इंटरफेस वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट। ये तो सभी को पता है कि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इन ऑर्डर टू यूज फंक्शनैलिटीज ऑफ लिस्ट इंटरफेस वी कैन यूज एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट क्लासेस, जो हमारी ये इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हैं। करेक्ट, अभी आप इतनी चीजें रिलेट कर पाए कि इंटरफेस है कलेक्शन, कलेक्शन जो हमारा इंटरफेस है उसको 3 इंटरफेस ने एक्सटेंड किया। अगर हम पहले इंटरफेस की बात करें लिस्ट, तो लिस्ट को इंप्लीमेंट 2 जगह से ये लिस्ट इंटरफेस हुई, एक एरे लिस्ट से और एक
लिंक्ड लिस्ट से। ओके, कोई डाउट यहाँ पे? लिस्ट इंटरफेस अभी हमने पढ़ा था कि हमारे जो कलेक्शन इंटरफेस था उसमें कितने मेथड थे। अभी हमारे पास एक लिस्ट इंटरफेस है, उसके पास भी कुछ अपने मेथड्स हैं, जैसे ऐड, ऐड ऑल, गेट, आइटरेटर, सेट, रिमूव, रिमूव ऑल, क्लियर, साइज, टू एरे, कंटेन्स। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ हमने यहाँ भी पढ़े थे कुछ इसी तरीके के, याद है? मेथड्स ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास लिस्ट लेवल पे भी कुछ मेथड्स हैं। ऐड करना है एलिमेंट को, ऐड ऑल, इट्स लाइक ऐड ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट, जो हमने कलेक्शन की बात करी थी। गेट हेल्प्स टू रैंडमली एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। आइटरेटर रिटर्न्स आइटरेटर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड सीक्वेंसली एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। सेट changes elements of the list। remove an element from the list। remove all करना है, remove all the elements from the list। clear भी वही काम करेगा जो remove all करेगा, but this clear is more efficient। size of the length of the list। to array, convert list of an array, list into an array। contains returns true if list contains specified elements। ये सारे यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक मेथड होगा लिस्ट इंटरफेस के। ओके, आज हमने कुछ ज्यादा ही मेथड्स देख लिए, करेक्ट, रीयूजेबल मेथड्स। अब आज बात करते हैं एग्जैक्टली एरे लिस्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास की। सो एरे लिस्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास क्या है? एरे लिस्ट इंप्लीमेंटेशन जो है वो इंप्लीमेंट करती है लिस्ट इंटरफेस को। इट्स हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स। अगर हमने अभी बात करी थी जो भी सबसे पहले कलेक्शन इंटरफेस था, कलेक्शन के अंदर लिस्ट था, लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट है। एरे लिस्ट क्या है? इंप्लीमेंटेशन क्लास है। सो एरे लिस्ट इंप्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस। इट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। ये स्पेसिफिक फीचर है एरे लिस्ट के। एंड एरे लिस्ट इज अ रीसाइजेबल एरे। ओके, जो हमने बात पढ़ी थी ग्रुएबल, सिमिलरली वही बात यहाँ पे है। एन एरे लिस्ट इज एन resizable array, also called as dynamic array। okay, it grows its size to accommodate new elements and shrink the size when the elements are removed। जो हमने बात करी थी मेमोरी के बारे में कि एरे में हमारा मेमोरी जो होता है वो वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपने डिक्लेरेशन के टाइम पे 100 एलिमेंट्स बोल दिए कि मैं 100 एलिमेंट्स एक एरे में स्टोर करूंगा, बट मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट्स स्टोर किए, इट मींस 95 एलिमेंट्स की जो मेमोरी थी वो मैंने वेस्ट कर दी। बट उस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं एरे लिस्ट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एरे लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स। यानी डुप्लीकेसी हमारे एरे लिस्ट में अलाउड होती है। वो तो लिस्ट का पार्ट है, तो लिस्ट में जब अलाउड है तो एरे लिस्ट में भी अलाउड है। एरे लिस्ट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। एरे लिस्ट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड, ये भी ठीक है। एरे लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, इट मींस हम पूरी लिस्ट में से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमें पहले से ही सर्च करना है या लास्ट से सर्च करना है, रैंडमली हम कहीं से भी पिक कर सकते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंटर्स थे ये थे एरे लिस्ट के। ओके, और एरे लिस्ट क्या है? एक इंप्लीमेंटेशन क्लास है, किसकी? लिस्ट इंटरफेस की। अब ये देखते हैं कि हमारी एरे लिस्ट कैसे बनती है। ठीक है, ये हम प्रॉपर एक एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, उसमें हमने जितने भी अभी तक मेथड्स कवर अप किए हैं उनमें से कुछ मेथड्स को हमने लिया है और उन मेथड्स को यहाँ पे यूटिलाइज किया है, सो दैट यू कैन गेट सम आइडिया कि इनका आउटपुट क्या होना चाहिए और क्या आएगा। ओके, सो पहले देखते हैं क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, लिस्ट स्ट्रिंग लैंग्वेजेस इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, ये आपका वे होता है किसी भी एरे लिस्ट को क्रिएट करने का। ओके, तो यहाँ पे आपने जो ब्रैकेट में दिया स्ट्रिंग, ये आपका जो हमने अभी रैपर क्लास की बात करी थी, ये वही चीज है कि अगर आपको सपोज यहाँ इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है, इन दैट केस लिस्ट, यहाँ स्ट्रिंग की जगह इंटीजर आप लिखोगे, INTEGER, जो भी आपका प्रॉपर है इंटीजर। ठीक है, या आप कैरेक्टर करना चाहते हो तो प्रॉपर CHARACTER। ओके, सो वो चीज आप यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट,
ये तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैं बोलूँ मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, और ये मेरा रेफरेंस हो गया लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस एक रेफरेंस है मेरा, ठीक है, किसका, मेरे लिस्ट इंटरफेस का, क्योंकि लिस्ट का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट तो हमारा एरे लिस्ट का ही होगा बिकॉज इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लैंग्वेजेस, अब मुझे इस पर्टिकुलर कलेक्शन में अगर कुछ ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, हमने एक मेथड पढ़ा था डॉट ऐड, करेक्ट, एडिंग न्यू एलिमेंट्स टू द एरे लिस्ट, कैसे ऐड करेंगे, ये जो रेफरेंस था लैंग्वेजेस डॉट ऐड, मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैंने जो भी अपनी स्ट्रिंग जो भी वैल्यू लिखनी थी वो मैंने यहाँ पास करी, सपोज हियर आई हैव पास जावा, सेकेंड टाइम लैंग्वेजेस डॉट ऐड पाइथन, लैंग्वेजेस डॉट ऐड रूबी। तो इस तरीके से मैंने एक पर्टिकुलर अपने एरे लिस्ट में ये 3 एलिमेंट्स ऐड कर लिए, जावा, पाइथन, रूबी। अगर मैं बात करूं ये इंडेक्स बेस है तो 0 इंडेक्स पे जावा होना चाहिए, 1 इंडेक्स पे पाइथन होना चाहिए और 2 इंडेक्स पे रूबी होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे SOPLN करके लैंग्वेजेस जो भी प्रिंट होंगी वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी। ओके, अभी हम इसका एग्जीक्यूशन पार्ट भी देखेंगे, बट बिफोर दैट I will explain you each and every line of the code, like every method. So adding an element at a particular index. अभी हमने जो यहाँ सीखा था वो क्या था कि मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है। अब मुझे अगर एक एलिमेंट किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करना है उसके लिए क्या करना होगा, लैंग्वेजेस डॉट ऐड। ओके, लैंग्वेजेस डॉट ऐड किया और इंडेक्स यहाँ पे पास करी 0 1 2, एज पर माय एजम्पशन 0 इंडेक्स पे जावा होगा, 1 पे पाइथन होगा और 2 पे रूबी होगा। अब मैंने बोला 1 पे जावा स्क्रिप्ट को ऐड कर दो, इट मींस 0 जावा के बाद जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, उसके बाद पाइथन आना चाहिए, फिर रूबी आना चाहिए। अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे मैंने SOPLN भी लगा दिया। नेक्स्ट एम्प्टी, एक मैंने एम्प्टी जो भी रीयूजेबल मेथड था उसके थ्रू इज एम्प्टी हमारे पास है, जिसके थ्रू मैं ये चेक करता हूँ कि क्या एरे लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, इट विल रिटर्न बुलियन आउटपुट। ओके, सो यहाँ मैंने लिखा इज लैंग्वेजेस लिस्ट एम्प्टी, ये स्ट्रिंग फॉर्म में मैंने बस लिख रखा है, लैंग्वेजेस डॉट इज एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स ये रिजल्ट देगा। फाइंड द साइज ऑफ एरे लिस्ट, अगर मुझे अपने एरे लिस्ट की साइज पता करनी है कि अभी करंटली इसके अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, उसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, साइज, ठीक है, लैंग्वेजेस डॉट साइज, इट विल गिव मी द काउंट कि कितनी लैंग्वेजेस इस पर्टिकुलर जो हमारा एरे लिस्ट है उसके अंदर स्टोर्ड है। अब अगर मुझे रिट्रीव द एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स, अगर मुझे पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स पे क्या लैंग्वेज स्टोर है वो पता करनी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉट गेट किया और यहाँ पे मैंने वो इंडेक्स लिख दी, जो भी इस इंडेक्स पे हमारी वैल्यू होगी वो हमें एज अ आउटपुट मिल जाएगी। फाइन, यहाँ पे मैंने गेट 0 किया है, यहाँ पे मैंने गेट 2 किया है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मॉडिफाई द एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स। अब अगर अभी मैंने यहाँ क्या किया था इसकी बात करूं तो मैंने इंसर्ट कराया था एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे, अब मैं चाहता हूं कि मॉडिफाई, यहाँ जावा स्क्रिप्ट था उसको C# या C# में, यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है C# मुझे यहाँ लिखना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, लैंग्वेजेस डॉट सेट, और सेम इंडेक्स दिए मैंने, इंडेक्स वन और मैंने ये वैल्यू पास कर दी, इट मींस ये इसको ओवरराइड कर जानी चाहिए, जब मैं इसका SOPLN में आउटपुट देखूं मॉडिफाइड लिस्ट में मुझे ये मिलना चाहिए, ना कि जावा स्क्रिप्ट, करेक्ट। सो अभी तक अगर बात करें मेथड्स की जो हमने यूज किए तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमने ऐड भी यूज कर लिया, गेट भी यूज कर लिया, सेट भी यूज कर लिया, अभी हमने ये मेथड्स नहीं यूज किए हैं, ठीक है, साइज हमने यूज कर लिया, और अगर पीछे कुछ मेथड्स की बात करें, ठीक है, सो पीछे में इज एम्प्टी हमने यूज कर लिया, अभी कंटेन्स हमने नहीं यूज किया है, ऐड यूज कर लिया, अभी रिमूव नहीं किया, अभी आगे हम और मेथड्स भी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको ये प्रोग्राम पूरा क्लियर होगा, इस प्रोग्राम में जो भी हमने मेथड्स यूज करे रेडीमेड वो भी आपको क्लियर होंगे। इसी प्रोग्राम को आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगर मुझे रिमूव करना है एलिमेंट को, जो हमारा रिमूव मेथड था लैंग्वेजेस डॉट रिमूव, अगर मुझे इंडेक्स बेस पे रिमूव करना है कि इंडेक्स 1 या 2 का पर्टिकुलर एक इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव करना है, इन दैट केस आई विल प्रेफर
लैंग्वेजेस डॉट रिमूव और यहाँ पे मैं अपनी इंडेक्स पास कर दूंगा। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ SOPLN करके यहाँ पे चेक कर लिया कि क्या वो रिमूव हुई या नहीं, एंड इट्स लाइक रिमूव होना तो ठीक है, बट उस पर्टिकुलर जो इंडेक्स है उसका ही एलिमेंट रिमूव हो रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक और एरे लिस्ट बनाई। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट फ्रॉम अनदर कलेक्शन। ओके, सो ये यहाँ पे मैं वो अचीव करना चाह रहा हूँ कि मैं एक और कलेक्शन को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाली चीज है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और लिस्ट बनाई, स्ट्रिंग, यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किया, न्यू, ये जो रेफरेंस आया ये नया रेफरेंस है, ठीक है, तो ये आपका नया कलेक्शन एक तरीके आपका बना, ठीक है, और उस कलेक्शन में मैंने क्या पास कर दिया, लैंग्वेजेस पास कर दी, ठीक है, यानी उस कलेक्शन के अंदर मेरी जितनी लैंग्वेजेस थी अभी तक जो भी मैंने स्टोर कराई थी वो सारी की सारी चली गई। फिर मैंने एक और यहाँ पे कलेक्शन में अदर लैंग्वेजेस का, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस था, ये अदर लैंग्वेजेस का बना दिया मैंने, और अदर लैंग्वेजेस में मैंने ऐड कर दिया कॉटलिन, सी, सी प्लस प्लस, पर्ल, ठीक है। अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, तो अभी आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, जावा, सी हैश, रूबी, करेक्ट, और उसके बाद अगर मैं अदर लैंग्वेजेस को चेक करूंगा तो कॉटलिन, सी, सी प्लस प्लस और पर्ल। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस था डॉट एड ऑल, मैंने क्या किया, एक और कलेक्शन को ऐड कर लिया। मेरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस था ये तो एक कलेक्शन था ही, उसमें मैंने इस कलेक्शन को, अदर लैंग्वेजेस कलेक्शन को भी ऐड कर लिया, और उसके बाद मैंने इसका आउटपुट चेक किया, ठीक है। सो इस कंडीशन में मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, एज पर माई एक्सपेक्टेशन, जावा, सी हैश, रूबी, उसके बाद कॉटलिन, सी, सी प्लस प्लस, पर्ल, ये आना चाहिए। इट मीन्स आउटपुट में दोनों ही जो मेरे डिफरेंट कलेक्शंस है मैंने एक ही के अंदर उसको ऐड कर दिया है, तो दोनों का आउटपुट सिंगल उसमें आना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा एक मेथड यूज किया, रिमूव ऑल। ओके, रिमूव ऑल भी हमने पढ़ा है। रिमूव ऑल में क्या करते हैं, अगर हमें एक पर्टिकुलर कलेक्शन को ही रिमूव कर देना है कलेक्शन के अंदर से स्पेसिफाइड सेट को, तो कैसे कर सकते, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मेरा एक कलेक्शन था उससे मैंने लैंग्वेजेस जो है उनको रिमूव कर दिया, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था, करेक्ट। तो लैंग्वेजेस में मेरा क्या था, जावा, सी हैश और क्या था, रूबी, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैंने आउटपुट चेक किया, आउटपुट में मैंने जो आपको बताया वही एज आउटपुट आना चाहिए। रिमूव ऑल अगर करेंगे, जो बात हमने करी थी, रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, अगर हमें रिमूव ऑल करना है तो उसके लिए हम क्या, जो बेस्ट अप्रोच है वो क्लियर है। हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक रिमूव ऑल है, एक क्लियर है, ठीक है। अभी रिमूव ऑल में हमने क्या किया, स्पेसिफाई, हमने सेट ऑफ कलेक्शन अपना दे दिया और उसने उस कलेक्शन को रिमूव कर दिया। बट अगर मैं यहाँ क्लियर यूज करूंगा तो वो उस पर्टिकुलर जो भी हमारा करंट कलेक्शन होगा, जैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, एरे लिस्ट टाइप का है, इसको एंटायर कलेक्शन को एम्प्टी कर देगा ये, ठीक है। ये नहीं देखेगा इसके अंदर 2 कलेक्शन है, 3 कलेक्शन है, ये पूरे के पूरे कलेक्शन को क्लीन आउट कर देगा और आपको एम्प्टी जो लिस्ट होगी आपकी वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने फिर से यहाँ पे एक बार इज एम्प्टी चेक कर लिया, इस बार क्या आउटपुट होना चाहिए, अगर एम्प्टी है तो ट्रू होना चाहिए, करेक्ट। ओके, ओके, सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल में कुछ और मेथड्स देखेंगे, कुछ और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट रेडीमेड मेथड्स जो भी हमारे पास हैं उनको हम अपने एरे लिस्ट में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइन, सो एक बार इस पे वापस आते हैं और यहाँ पे एरे लिस्ट पे जाते हैं। सो एरे लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, एक बार प्रोग्राम को देख लेते हैं। प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, ये मेरी क्लास है एरे लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये मेन मेथड है। मैंने यहाँ पे एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे, ओके। यहाँ पे मैंने लैंग्वेजेस, जो मेरा रेफरेंस था लैंग्वेजेस डॉट ऐड करके मैंने अपनी जो भी प्रेफरेबल लैंग्वेजेस थी वो मैंने पहले ऐड कर ली, SOPLN करके इनका आउटपुट निकाला कि क्या ये लैंग्वेजेस ऐड हो गई या नहीं। उसके बाद मुझे कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज और ऐड करनी थी, फॉर दैट मैंने यहाँ पे इंडेक्स बेस पे मैंने यहाँ पे जो एक और लैंग्वेज थी उसे ऐड कर लिया।
नेक्स्ट टाइम इज एम्प्टी मुझे चेक करना था, क्या ये जो हमारा एरे लिस्ट है वो एम्प्टी है या नहीं है, वो मुझे इज एम्प्टी जो हमारा मेथड था उससे मैंने वेरीफाई करा। अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं राइट नाउ वो पता करना था, तो मैंने डॉट साइज से कर लिया। मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या वैल्यू है एलिमेंट की वो अगर फेच करनी थी, फॉर दैट आई हैव यूज्ड गेट, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स प्रोवाइड कर दी। फाइन, ओके। फिर उसके बाद मुझे ये चेक करना था कि अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया था, अब मुझे सेट करना है, इट मींस मुझे मॉडिफाई करना है। इंडेक्स 1 पे मैंने जावा स्क्रिप्ट किया था, अब मैं इंडेक्स 1 पे सी हैश करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, लैंग्वेजेस, ये तो मेरा ऑब्वियस सी बात है एरे लिस्ट था, ठीक है, डॉट सेट किया, ये मेरा मेथड था रीयूजेबल मेथड, और उसमें मैंने वन पोजीशन जो भी है उसमें मैंने ये वैल्यू सेट करा दी। मॉडिफाइड जो भी टॉप लैंग्वेजेस हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट करा ली, करेक्ट। अब अगर मुझे रिमूव करना है इंडेक्स बेसिस पे, उसके लिए क्या यूज करना होगा, रिमूव। रिमूव मेथड है, उसमें मैंने इंडेक्स प्रोवाइड कर दी, और अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि क्या वो पर्टिकुलर लैंग्वेज जो भी मैंने इंडेक्स प्रोवाइड करी है उस इंडेक्स से रिमूव हुई या नहीं। ओके, नेक्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे एड ऑल का एक एग्जांपल चेक करना चाहता था। एड ऑल मींस एडिंग कलेक्शन इनसाइड कलेक्शन, कुछ इस तरीके का। तो मैंने क्या किया, एक कलेक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मेरा था यहाँ पे बनाया, ओके, एरे लिस्ट टाइप का। उसके अंदर मैंने जो भी अपनी लैंग्वेजेस स्टोर कराई थी वो मैंने पास कर दी पहले ही, ठीक है। अभी अगर मैं इसको आउटपुट में चेक करूंगा, एट प्रेजेंट यहाँ पे मुझे सिर्फ यही लैंग्वेजेस मिलेंगी जो मैंने अभी ऊपर एड ऑन करी हैं या मॉडिफाई करी है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और अपना जो भी कलेक्शन है एरे लिस्ट टाइप का वो मैंने बनाया। यहाँ पे मैंने कुछ लैंग्वेजेस, एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस ऐड करी, कॉटलिन, सी, सी प्लस प्लस, पर्ल। और उसके बाद मैंने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मेरा कलेक्शन था उसमें डॉट एड ऑल किया और एक और कलेक्शन ऐड कर लिया, ओके। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मेरे दोनों कलेक्शन का आउटपुट मुझे मिल जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे रिमूव ऑल मेथड यूज किया। रिमूव ऑल, अगर मुझे एक पर्टिकुलर कलेक्शन को रिमूव करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया। मेरा मेन कलेक्शन था जिसके अंदर सारी वैल्यूज स्टोर थी, वो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसमें डॉट यहाँ पे मैंने रिमूव ऑल किया और मैंने लैंग्वेजेस दे दिया, ओके। तो इट विल रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेजेस, ओके। तो यहाँ पे जो भी हमने लैंग्वेजेस एरे लिस्ट में यूज किया होगा, जो भी चीजें हमने स्टोर कराई होंगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट, और आउटपुट में मेरे पास सिर्फ वो चीजें रहेंगी जो मैंने एज अ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड करी हुई है, करेक्ट। फिर मैंने यहाँ पे एक बार रिमूव ये क्लियर मेथड यूज किया, सो दैट आई वांट टू क्लियर ऑल द डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा एरे लिस्ट था उससे मुझे सारा का सारा डेटा क्लीन करना था, फॉर दैट आई हैव यूज्ड क्लियर मेथड। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आउटपुट पे चेक किया, एम्प्टी लिस्ट आनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड। अगर एम्प्टी लिस्ट है, इज एम्प्टी, इट मींस इट इज ट्रू। एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। मैंने यहाँ एग्जीक्यूशन करी, एग्जीक्यूशन में क्या मिलेगा, मुझे बहुत कुछ मिला है। एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे कि क्या आउटपुट में जो चीजें आ रही हैं वो सही हैं या नहीं। पहला आउटपुट जो था वो था लाइन नंबर 16 पे। अगर मैं बात करूं, मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए थे अपने एरे लिस्ट में, उसका मैंने आउटपुट चेक किया, जावा पाइथन रूबी, करेक्ट। उसके बाद मैंने एक और एलिमेंट लाइन नंबर 19 पे ऐड किया, ओके, सॉरी 18 पे ऐड किया और 19 पे मैं उसको चेक कर रहा हूँ। तो मुझे वहां पे क्या वो मिल रहा है, जावा स्क्रिप्ट। ये मैंने किस पोजीशन पे ऐड किया था, 1 पोजीशन पे, इसलिए मुझे ये 1 पोजीशन पे ऐड होता हुआ दिख रहा है, करेक्ट। उसके बाद मैंने इज एम्प्टी चेक किया लाइन नंबर 21 पे, इज द लैंग्वेज लिस्ट एम्प्टी, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो आउटपुट में यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज तो हैं, इट मींस इट इज नॉट एम्प्टी, करेक्ट। उसके बाद मैंने क्या ट्राई किया, साइज। मुझे साइज पता करना था कि ठीक है अगर एम्प्टी नहीं है तो साइज क्या है इसका, ठीक है। मुझे पता चला इसका साइज 4 है, इसके अंदर 4 लैंग्वेजेस स्टोर्ड है, ओके फाइन। अब अगर मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो पता करनी है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज डॉट गेट यूज किया है, इंडेक्स दी। 0 इंडेक्स पे मैं देखता हूँ तो 0 इंडेक्स पे आउटपुट जावा आना चाहिए, और 2 इंडेक्स की बात करूँ तो 0 1 2 पाइथन, ओके। सो जावा एंड पाइथन आउटपुट में मुझे मिल गया, इट मींस इट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट मैंने मॉडिफाई किया,
इंडेक्स 1 पे सी हैश किया और आउटपुट में चेक किया कि मॉडिफिकेशन हुआ या नहीं। अगर मैं मॉडिफाइड टॉप लैंग्वेजेस की बात करूं तो जावा और यहाँ पे सी हैश मुझे मिल गया। मैंने किसको मॉडिफाई किया था? जावा स्क्रिप्ट को। क्या वो मॉडिफाई हुआ? करेक्ट हो गया। ठीक है। अब मुझे अगर रिमूव करना है किसी एक एलिमेंट को इंडेक्स स्पेस पे, तो मैंने यहाँ पे रिमूव किया और लाइन नंबर 32 पे मैंने इसका आउटपुट चेक किया कि क्या लाइन नंबर जो इंडेक्स 1 पे चीज है वो रिमूव हुई या नहीं। तो इंडेक्स 1 की बात करूं 0 1 ये रिमूव हो जाना चाहिए और आउटपुट में सिर्फ जावा पाइथन और रूबी आना चाहिए। क्या वो आ रहा है? करेक्ट, जावा पाइथन रूबी। सो इट मींस इट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, एक एरे लिस्ट बनाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, उसमें स्टोर कराया लैंग्वेजेस को। और यहाँ एक और लिस्ट बनाई अपनी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 40 पे दोनों कलेक्शंस को या दोनों लिस्ट को मैंने ऐड कर लिया। ओके। और लाइन नंबर 41 पे अगर मैं उसका आउटपुट देख रहा हूँ, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो मुझे क्या मिल रही है? जावा पाइथन रूबी, ये मेरी फर्स्ट कलेक्शन है, और ये मेरी कॉटलिन सी सी प्लस प्लस पर्ल, ये मेरे सेकंड कलेक्शन है जो मेरा अदर लैंग्वेजेस का है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ मैं बात करूं तो उसके बाद मैंने एक बार रिमूव ऑल ट्राई किया, जिसमें मैंने लैंग्वेजेस, जो भी मेरा लैंग्वेजेस का एरे लिस्ट थी उसको रिमूव किया। लैंग्वेजेस में मेरे पास क्या स्टोर था? जावा पाइथन रूबी। अगर ये मैंने रिमूव कर दिया तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? सिर्फ कॉटलिन सी सी प्लस प्लस पर्ल। आउटपुट में क्या आ रहा है? करेक्ट, यही आउटपुट आ रहा है। ओके। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट लाइन नंबर 45 पे मैंने क्लियर लगाया है, मुझे क्लियर करना है सारे एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एरे लिस्ट। ओके। मैंने क्या किया? क्लियर किया, आउटपुट में मुझे एम्प्टी लिस्ट आ गई। करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या ये जो मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मेरा एरे लिस्ट है क्या वो एम्प्टी है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है? यस, ट्रू, इट इज राइट। सो ये कुछ मेथड्स थे, रीयूजेबल मेथड्स थे जो हमने यूज किए। यहाँ पे मैंने आपको शो किया हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस एरे लिस्ट, राइट, और कैसे हम इसके अंदर फंक्शन कर सकते हैं। ओके। सो एक बार वापस से आते हैं और फिर से चेक करते हैं कि जो हमारा एक और एग्जांपल था जिसको हम देखने वाले थे उसको देखते हैं एक बार। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हमने थोड़े और मेथड्स यूज किए हैं। अभी हमने यहाँ पे काफी मेथड्स यूज कर लिए हैं, बट स्टिल देयर आर सम मेथड्स व्हिच वी हैवंट यूज्ड येट, राइट। सो मैंने वो मेथड्स भी यूज किए हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स या डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू बस इसलिए करने का है सो दैट आपको आइडिया मिले कि मेथड्स को कब कैसे यूज करना है। बिकॉज जब तक आपको मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि हमारे पास कौन से रेडीमेड मेथड्स हैं, आप उन्हें यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं पहले आपको पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में बताऊं, उनके इंटरफेसेस के बारे में बताऊं, उनके रीयूजेबल मेथड्स के बारे में बताऊं, उनकी डेफिनेशंस बताऊं। देन हम उसके बाद इस पे अपने जो हैंड्स ऑन है या जो एग्जांपल्स हैं उनको देखें, सो दैट आपको पहले एक थ्योरी पार्ट पता चल जाए, एक ओवरव्यू पता चल जाए कि एग्जैक्टली कलेक्शन है क्या, इसका यूज क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, कितने मेथड्स हैं हमारे पास। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे मेथड्स ट्राई किए हैं, इम्प्लीमेंटेशन ट्राई करी है और आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन शो करी है। माइट बी अभी भी मैंने बहुत से मेथड्स ना यूज किए हो, वो आप यूज करो, आप यूटिलाइज करो, आप चेक करो कि आउटपुट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या जो हमने एज अ डेफिनेशन जो हमने यहाँ मेंशन किया है वो एज अ डेफिनेशन आउटपुट आ रहा है या नहीं। अगर आपको मेथड्स की नॉलेज हो गई कि किन मेथड्स को कहाँ पे कैसे यूज करना है, इनका क्या आउटपुट है, इसके आउटपुट को कैसे यूटिलाइज करना है, आप आधे से ज्यादा चीजें इजिली कर पाओगे। जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाती है कलेक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे टन्स ऑफ मेथड्स हैं, वो तभी है जब आपको मेथड्स के बारे में पता होगा, मेथड को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में पता होगा। ओके। सो इस एग्जांपल के बारे में देखते हैं। इस एग्जांपल में मैंने कुछ नहीं किया, एक और यहाँ पे एरे लिस्ट बनाई है नेम्स की। यहाँ पे मैंने सारे नेम्स ऐड किए हैं, योगेश, रवि, राजेश, निधि, राज, हनी, श्रीकांत, राजेश, रवि, राजवीर। ओके। यहाँ आप देख रहे होगे मैंने रवि 2 बार ऐड किया हुआ है, राजेश को भी 2 बार ऐड किया हुआ है, करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या शो करने की कोशिश करी, यहाँ मैंने ये शो करने की कोशिश करी कि लिस्ट में डुप्लीकेसी अलाउड होती है। तो अलाउड होती है, कैसे होती है मैंने यहाँ शो कर दिया आपको कि रवि को मैंने 2 बार स्टोर कर दिया, राजेश को मैंने 2 बार स्टोर कर दिया, करेक्ट। अभी हम देखेंगे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है या नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात होता है, तभी हमने अभी
लास्ट एग्जांपल में गेट करके देखा था कि जब हम गेट कर रहे थे और इंडेक्स बेस पे आउटपुट निकाल रहे थे तो वो हमें करेक्ट आउटपुट दे रहा था। करेक्ट, तो हमने जो भी दो चीजें थी, जो मेन फीचर था लिस्ट का, वो हमने वेरीफाई कर लिया अब तक। बट अभी कुछ और मेथड्स देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे SOPLN करके नेम्स जो भी हमारे यहाँ पे ऐड हुए हैं लिस्ट में, वो सारे के सारे नेम प्रिंट आउट कराए। अब अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है, चेक इफ एन एरे लिस्ट कंटेन्स अ गिवन एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर जो भी मैंने एलिमेंट्स ऐड किए हैं उनमें से मैं अगर ये चेक वेरीफाई करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस एरे लिस्ट के अंदर है या नहीं, फॉर दैट वी कैन यूज कंटेन्स मेथड। ठीक है, कंटेन्स मेथड हमने इसकी डेफिनेशन पीछे पड़ी हुई है, बट यहाँ हम उसकी इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। कैसे इंप्लीमेंटेशन करिए, बहुत ही सिंपल है, नेम्स डॉट कंटेन्स। मैंने कहा था सारे रीयूजेबल रेडीमेड मेथड्स हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उन मेथड्स को यूज करना है। और उसके अंदर मैंने निधि में मेंशन कर दिया। अगर इस पर्टिकुलर नेम्स जो हमारा ये एरे लिस्ट है, अगर इसके अंदर निधि नाम का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा तो ये ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एलिमेंट इन एन एरे लिस्ट। अगर मुझे फर्स्ट अकरेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो भी मेरे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, अब उसमें से मैं चाहता हूं कि उसकी इंडेक्स पता चले, और अगर वो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है तो उसकी जो फर्स्ट अकरेंस है वो मुझे पता चले। ओके, तो फॉर दैट वी कैन यूज इंडेक्स ऑफ। कैसे यूज करना है, सेम, नेम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मैंने अपना वो एलिमेंट का नाम दे दिया, जैसे यहाँ मैंने राजेश दिया। अब यहाँ राजेश 2 बार है, राजेश एंड राजेश। आउटपुट में क्या आना चाहिए अभी हम देखेंगे इसमें, बट डेफिनेशन से ये पता चल रहा है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस, यानी फर्स्ट अकरेंस कौन सी होनी चाहिए, 0 1 2। 2 है फर्स्ट अकरेंस, आगे की जो अकरेंस है वो बाद में आती है। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इंडेक्स ऑफ लास्ट अकरेंस, यानी कि लास्ट, अगर एक एलिमेंट है मेरा मल्टीपल टाइम्स है तो उसमें से सबसे लास्ट अकरेंस उसकी क्या है, अगर वो मुझे चेक करना है, उसके लिए भी हमारे पास मेथड है। क्या मेथड है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ओके, कैसे यूज किया, नेम्स डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और मैंने उस एलिमेंट का नाम दे दिया। यहाँ पे नाम क्या दिया मैंने, रवि। रवि भी यहाँ पे मेरे पास 2 हैं, रवि 0 1 पोजीशन पे भी है और आगे भी पोजीशन पे। तो क्या यहाँ पे 1 आना चाहिए, या जो लास्ट मेरे पास पोजीशन में है वो आना चाहिए। अभी आउटपुट में देखते हैं हम लोग इससे। ओके, नेक्स्ट, सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, सॉर्टिंग ऑफ एन एरे लिस्ट यूजिंग कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रियूजेबल मेथड्स हैं, जैसे कि ये कलेक्शंस जो हमारी क्लास थी, इसके अंदर भी हमारे पास रियूजेबल मेथड थे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने सॉर्ट जो हमारा है उसको यूज कर लिया है। ठीक है, और आई थिंक आगे मैंने रिवर्स को भी यूज किया है। मैंने यहाँ पे 2 का एग्जांपल लिया है कि 2 को कैसे यूज कर सकते हैं। आप एक अपनी एक खुद की एक एरे लिस्ट बना सकते हो इंटीजर टाइप की, वहां पे आप मैक्सिमम मिनिमम खेल सकते हो, या डिफरेंट बाइनरी सर्च ऑपरेशन कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, वो सारी चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हमें मेथड्स को यूज करना है, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। माइट भी कुछ मेथड्स अभी इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे मैंने मिस कर दिए हूँ ड्यू टू दिस टाइम कंस्ट्रेंट, बट आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको पूरी नॉलेज देना कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीयूजेबल और रेडीमेड मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, और अपने जो डेली रूटीन के जो भी प्रोग्रामिंग है उसको हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, इजी गोइंग कर सकते हैं, अपना टाइम को सेव कर सकते हैं, अपने टाइम को। ओके, सो वापस से आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल क्या है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट। मैंने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट किया, ये कलेक्शंस हमारी क्लास है, नॉट अ इंटरफेस। ओके, और ये इसका एक रीयूजेबल स्टैटिक, ओके, ये एक स्टैटिक मेथड है। यहाँ पे मैंने नेम्स किया, ये मुझे सॉर्टिंग करके दे देगा। उसके बाद मैंने क्या किया, कलेक्शंस डॉट रिवर्स किया। ठीक है, तो ये मुझे रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट लाके दे देगा। ओके, सो अभी हम इसका एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने इस प्रोग्राम के में जितने भी मेथड्स थे वो हमने देख लिया, इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने देख लिया। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या आउटपुट एज इट इज आ रहा है या नहीं, जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, या जो मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा है, क्या मेथड्स वैसे ही आउटपुट दे रहे हैं या नहीं। ओके, तो एक बार क्विकली मूव करते हैं इस पे और चेक करते हैं। सो हमारे पास इसके लिए कोई है या नहीं है, एक बार देखना होगा। ओके, this is the class we have. Okay,
यहाँ पे मैंने इसको क्लास का नाम सर्च एंड शॉर्ट रखा हुआ है, बट मैंने यहाँ डिफरेंट मेथड्स और भी यूज किए हुए हैं। ये मेरा मेन मेथड है और मैंने यहाँ पे एक अपनी एरे लिस्ट क्रिएट करी है जिसका नाम है नेम्स। उसके अंदर मैं एलिमेंट्स ऐड किए हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं डिफरेंट टाइप्स। यहाँ डुप्लीकेसी भी मैंने शो करने की कोशिश करी है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे SOPLN करके आउटपुट चेक किया है कि क्या ये सारे एलिमेंट्स ऐड हुए हैं या नहीं। उसके बाद अगर मुझे चेक करना है कि एरे लिस्ट में स्पेसिफिक एलिमेंट कंटेन्स है या नहीं, उसके लिए मैंने क्या किया है, नेम्स डॉट कंटेन्स, और मैंने वो एलिमेंट का यहाँ पे नाम प्रोवाइड किया है। सिमिलरली अगर मुझे फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट पता करना है इन एन एरे लिस्ट, उसके लिए मैंने क्या किया है, नेम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और मैंने यहाँ पे वो वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है राजेश। ओके, तो ये इसकी जो भी फर्स्ट अकरेंस इंडेक्स होगी उसे रिटर्न बैक कर देगा। फाइन। नेक्स्ट मैंने यहाँ क्या किया है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ जो भी मेरा यहाँ पे एरे सॉरी जो भी हमारी यहाँ एरे लिस्ट थी, उस एरे लिस्ट में जो भी वैल्यूज हमारी स्टोर थी उसमें सपोज यहाँ मैंने रवि एज एलिमेंट जो भी दिया है उसकी जो लास्ट अकरेंस होगी, अगर मेरा रवि जो है मल्टीपल टाइम स्टोर्ड है, ओके, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए किया भी है, तो जो इसकी लास्ट अकरेंस होगी वो एज आउटपुट आनी चाहिए। ओके, फिर मुझे सॉर्टिंग करनी थी तो मैंने कलेक्शंस क्लास से, जो मेरी यूजबिलिटी क्लास थी, ओके, यूटिलिटी क्लास थी सॉरी, उससे मैंने एक मेथड कॉल किया सॉर्ट। ये मेरा स्टैटिक मेथड था और मैंने उसमें नेम्स प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद आउटपुट में चेक कर लिया कि सॉर्टिंग हो भी रही है या नहीं। उसके बाद मैंने रिवर्स, सिमिलरली जैसे यहाँ पे शॉर्ट यूज किया वैसे ही मैंने यहाँ पे रिवर्स यूज कर लिया और मैंने आउटपुट में चेक कर लिया कि क्या रिवर्स हो रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं रीयूजेबल, और उनको मैं यूज कर रहा हूँ, उनको मैं आउटपुट में चेक कर रहा हूँ। अब अगर ये सारे मेरे पास मेथड्स अवेलेबल हैं तो मैं खुद से अपने मेथड्स क्यों बनाऊंगा, करेक्ट। सो हमें रेडीमेड्स मेथड यूज करने चाहिए अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो, राइट। लेकिन वो तभी हम कर पाएंगे जब हमें उनके बारे में पता होगा। तो आउटपुट देख लेते हैं एक बार क्विकली। आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट में अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एरे लिस्ट बनाई, उसमें हमने ऐड किया और ये सारी चीजें ऐड होके क्या यहाँ पे आउटपुट में आई है। लाइन नंबर 23 में हमें आउटपुट मिल रहा है योगेश, रवि, करेक्ट, राजेश, निधि, राज, हनी, श्रीकांत, राजेश, रवि, राजवीर। इट मींस इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन है, डुप्लीकेसी भी मेंटेन है, करेक्ट। और इंडेक्स बेस, जब इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है इट मींस आपका इंडेक्स बेस पे आप अगर फेचिंग करोगे तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। फिर मैंने यहाँ पे कंटेंट्स चेक किया लाइन नंबर 25 पे कि निधि जो ये एलिमेंट मैंने ऐड किया था वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। आउटपुट में मुझे मिल रहा है ट्रू, बिकॉज इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में हमारा निधि एज ए एलिमेंट स्टोर है, करेक्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट अकरेंस मुझे चेक करनी है राजेश की। राजेश यहाँ पे 2 बार है, 0 1 2 पे, 3 4 5 6 7, 7 आए या फिर 2 आए। फर्स्ट अकरेंस है इसलिए 2 आया, ओके। नेक्स्ट, लास्ट अकरेंस अगर मुझे चेक करनी है, नेम्स डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, किसका मुझे चेक करना है, रवि का। रवि की मेरे पास इंडेक्स कितनी है, 0 1, एक तो 1 इंडेक्स है, दूसरी कौन सी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 8 मेरी, एक है 1 और एक है 8, आउटपुट में क्या है 8, बिकॉज ये मुझे लास्ट अकरेंस जो भी मैंने रिक्वेस्ट एलिमेंट किया है उसका इन द एरे लिस्ट, ओके। सॉर्टिंग करनी थी, सॉर्टिंग के लिए मैंने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट किया। कैसे सॉर्टिंग करी, यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्शन ऑर्डर जो हमने मेंटेन किया था उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट आया था, बट हमने जब सॉर्टिंग कर ली तो हमारा इस तरीके से आउटपुट आ गया, ओके। अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग हुई है, यहाँ पे H पहले आया है, N देन R, R में भी आप देख रहे हो R A J, फिर राजेश में E दोनों में कॉमन है और यहाँ पे V, इस वजह से राजेश पहले आया है और राजवीर बाद में आया है। और अगर यहाँ रवि की बात करें तो रवि इसीलिए बाद में, देन श्रीकांत, देन योगेश, ओके। तो सॉर्टिंग भी हो गई हमारी। रिवर्स अगर चेक करना है इसी का रिवर्स हो जाएगा, तो इसका रिवर्स अगर मैं बात करूँ तो योगेश, श्रीकांत, रवि, रवि, राजवीर, फिर उसके बाद राजेश, राजेश, राज, निधि और फिर हनी, ओके। तो यहाँ तक हमने जितने भी हमारे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज मेथड्स थे, रीयूजेबल मेथड्स थे,
रेडीमेड मेथड्स थे वो हमने यूज करके देखे विद द हेल्प ऑफ एरे लिस्ट। यहाँ एरे लिस्ट की हमने इम्प्लीमेंटेशन करके देखी। हमने जो लिस्ट की बेसिक चीजें थी, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करना या डुप्लीकेसी मेंटेन करना, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। यहाँ पे हमने इंडेक्स स्पेस पे भी चीजें देख ली कि इंडेक्स स्पेस पे अगर मुझे अब अगर वैल्यू फेच करनी है वो भी पता चल रही है। क्या एग्जैक्टली इंडेक्स स्पेस में अगर मैं फर्स्ट अकरेंस चेक कर रहा हूँ या लास्ट अकरेंस चेक कर रहा हूँ तो मुझे वहां पे भी करेक्ट इंडेक्स मिल रही है। ओके, सो ये थे हमारे कुछ मेथड्स, और ये मैंने 2 एग्जांपल्स यूज किए जहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूटिलाइज किए सो दैट आपको कुछ आइडिया मिले इम्प्लीमेंटेशन के लिए एरे की, ओके, एरे लिस्ट की। अब एक और क्विक एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। क्विक एग्जांपल में है हमारे पास आइट्रेटिंग ओवर एन एरे लिस्ट। ओके, एक एग्जांपल ये भी हमारे पास एक एरे लिस्ट का ही। अभी तक हमने डिफरेंट सारे जितने भी मेथड्स थे, रीयूजेबल मेथड्स थे, वो सब हमने देख लिए। अब हम ये देख लेते हैं एरे में हमने स्टोर तो करा लिया, ठीक है, रिमूव भी करा लिया, क्लियर भी करा लिया, लेकिन एरे में आइट्रेशन भी तो करानी है। जो हमने ये एरे लिस्ट बनाई इसमें आइट्रेशन भी तो करा के देखनी। जब तक आइट्रेशन नहीं कराओगे आपने, आप ये समझो आपने स्टोर कर लिया, लेकिन अब अगर मुझे उससे आइट्रेट करके आउटपुट निकालना है, फेच करना है, कैसे करूंगा जब तक मुझे आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, करेक्ट। सो एरे लिस्ट में अगर मुझे आइट्रेशन करनी है, मेरे पास क्या पॉसिबल वेज हैं? पहले 2 वेज, पहले 2 क्या, ऑलमोस्ट तीनों वेज आपको पता ही होंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। हमारे पास लूप हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। पहला फॉर लूप है, सेकंड है फॉर ईच, एंड थर्ड इज आइट्रेटर। ओके, सो फॉर लूप क्या है? फॉर लूप जो हमारा बेसिक लूप था, राइट, फॉर ईच था जो हमने एक एनहांस्ड फॉर लूप जो हमने बात करी थी, और यहाँ पे एक है आइट्रेटर, ठीक है। आइट्रेटर के थ्रू भी हम यहाँ पे आइट्रेट करके और फेच कर सकते हैं इन वैल्यूज को। अभी हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे, बट बिफोर दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कोड। ओके, सो ये मेरी क्लास थी एरे लिस्ट आइट्रेशन। यहाँ पे मेन मेथड है, ये मेरी एरे लिस्ट है, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉय आईडीज को ऐड कर लिया है। अब मुझे आइट्रेट करना है, आइट्रेट करने के लिए मैंने सिंपल फॉर लूप यूज किया। फॉर लूप ये तो बेसिक है, फॉर इंट आई 0, आई इज लेस देन आई एम पी आई डी जो भी हमारा यहाँ पे था डॉट साइज। साइज से मुझे क्या पता चल जाएगा? काउंट 0 1 2 3 4 4, यहाँ पे मुझे पता चल गया, इसका साइज पता चल गया। यानी अगर मैं बात करूं साइज की 1 2 3 4 5, वो तो मैंने इंडेक्स बेस पे बोला था 0 1 2 3, बट साइज की बात करूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 साइज आ गया। ओके, 0 से शुरू करा है हमने और आई प्लस प्लस करा, ठीक है। यानी ये 0 से जाएगा कहाँ तक? 4 तक जाएगा। ओके, अब यहाँ मैंने क्या किया, आई एम पी आई डी डॉट गेट, गेट यानी इंडेक्स बेस पे मुझे फेच करना है। कैसी इंडेक्सेस चाहिए? 0 से इंडेक्स शुरू होगी, 0 से लेके कहाँ तक जाएगी? साइज क्या था? 5 था, लेकिन मुझे 4 तक जाना है। यानी कि गेट 0 का लेके आओ, गेट 1 का लेके आओ, गेट 2 का लेके आओ, गेट 3 का लेके आओ, गेट 4 का लेके आओ। गेट 0 का जाएगा तो 10 बनाएगा, अगर गेट 1 पे जाएगा 102, 2 पे जाएगा तो 103, 3 पे जाएगा 104, 4 पे जाएगा 105। ओके, सो इन दिस वे फॉर लूप से हम आइट्रेट कर सकते हैं। इसी चीज को अगर हमें फॉर ईच से आइट्रेट करना है, सिंपली यहाँ पे मैंने इंटीजर आई किया, जो मैंने यहाँ पे स्टोर कराया हुआ है आई एम पी आई डी, मैंने उसका रेफरेंस दिया। यहाँ पे जो भी आई एम पी आई डी थी वो मैंने यहाँ पे इंटीजर में, जो मैंने यहाँ पे आई फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा के आउटपुट में। ये मेरा फॉर ईच जो हम अभी लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, सेम वही फॉर ईच है, नथिंग एल्स। ओके, तो 1 बाय 1 ये क्या करेगा, एम्प्लॉय जो आई एम पी आई डी है इस एरे लिस्ट से 1 बाय 1 वैल्यू निकालेगा, आई में स्टोर कराएगा। ओके, और ये वैल्यूज इंटीजर टाइप की, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। 1 बाय 1 होगा, इसलिए आपका आउटपुट फर्स्ट टाइम में 101 102 103 104 105 आपका यहाँ पे आइट्रेट होकर आउटपुट मिल जाएगा। ओके, थर्ड अप्रोच की बात करें तो वो आइट्रेटर अप्रोच है। ओके, हमने मेथड भी पढ़ा था, अगर याद हो, यहाँ पे कहीं मेथड पढ़ा था, ये आइट्रेटर रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड टू सीक्वेंशियली एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। ओके, यानी अगर मुझे एक्सेस करना है यानी आइट्रेट करना है, सिंपल सी बात है, उसके लिए हम आइट्रेटर जो हमारा मेथड है उसे यूज कर सकते हैं, और वो रिटर्न क्या करेगा? आइट्रेटर ऑब्जेक्ट यूज कर रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। तो क्विकली देखते हैं एक बार,
यहाँ पे इसने क्या किया, impid.iterator, मैंने वही iterator मेथड यूज किया अपना, ठीक है। उसने एक iterator ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे iterator टाइप का रिटर्न कर दिया, जो id था, id डॉट हैज नेक्स्ट। ओके, हैज नेक्स्ट क्या करता है, ये चेक करता है क्या एलिमेंट अभी अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो ये रिटर्न ट्रू करता है, वाइल जब तक ट्रू रहेगा तब तक वाइल आगे प्रोसेस करने देगा, अदरवाइज वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टाइम जब आएगा वो चेक करेगा कि वैल्यू हमारे पास है, वो जाएगा id डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करेगा, जो ये 101 है इस वैल्यू को निकाल के आउटपुट में लेके आएगा। सेकंड टाइम फिर जाएगा 102 के लिए जाएगा, थर्ड टाइम 103, फोर्थ टाइम 104 एंड फिफ्थ टाइम 105। ओके, सो ये आपका तब तक करता रहेगा, और जब ये 6 टाइम जाएगा यहाँ पे id डॉट हैज नेक्स्ट, तो उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं imp id डॉट आइट्रेटर, जो हमने यहाँ वैल्यू स्टोर करी, वो हमने अपने जो एरे लिस्ट थी वो तो हमारी सिर्फ 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक ही थी, ठीक है। अब मैं उसके आगे भी अगर चेक कर रहा हूँ तो उसके अंदर लिस्ट में तो कुछ है ही नहीं, करेक्ट। तो जब मेरे पास कुछ है नहीं तो ये आउटपुट में फॉल्स देगा। वाइल की कंडीशन होती, जब तक ट्रू दोगे तब तक तो हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे, अगर यहाँ पे फॉल्स आ गया तो आउटपुट वहीं से टर्मिनेट कर देगा उस लूप को। बस आपका लूप इसीलिए जो चलेगा वो 0 1 2 3 4, बस आउटपुट में आपको क्या आ जाएगा 101 102 103 104 105, सिंपल। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना, हैश ने आपका तभी काम करेगा या तभी आउटपुट देगा अगर यहाँ पे आईडी जो हमने ये लिखा हुआ है इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर हो रही होगी, इन दैट केस इट विल रिटर्न ट्रू, और तभी हमारा ये लूप आगे एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज टर्मिनेट हो जाएगा अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। Okay, I think we have covered so many things from collection framework. In today's session, we had tried to cover things from array list, because we have some more implementation classes. We will cover one by one. Like in other sessions, we will try to cover some different implementation classes. For today, my main objective was to give you an overview on collection framework, like different types of these interfaces which are available in collection framework, different ready-made methods which are available, and at least we can try to implement one implementation class. So for today we have covered this array list. Okay, so I think for Q&A we can skip this session, because till now we have not yet covered entire collection, and like once we will finish entire collection topic, then we can do a complete session or a complete 30 minutes Q&A, where we will discuss all different topics, all different questions related to collection framework. Okay, so I hope today you guys have enjoyed a lot on the collection framework. This was very new topic for all of you. Might be some of you have never worked on collection or never learned this particular topic. So this is definitely a new topic, a complex one, but I will recommend all of you, please try to do hands-on, try to implement different types of these list, because today we have worked on the array list. Okay, so for now, for the assignment purpose, you can try to implement different types of list, array list, and try to use different methods, and accordingly you can check the outputs, right? Once you will do the hands-on, then suppose if you will start implementing different types of array lists, then once we will move on the further implementation classes, suppose linked list or different set or map, so you can relate easily. Like today you might feel that these all are the new topics, you never heard about these topics and how you can learn further, right? So not to worry, I will give each and each for each topic I will give basic examples, I will try to cover all the methods, I will try to cover all the possible implementation, so that you can get some idea how we can
implement or how we can utilize this collection framework. So from interview point of view, today I have shared couple of questions with you. I have explained what kind of questions interviewer can ask and what answers interviewers can expect. Okay, so try to learn, try to implement these things till the next session. Okay, okay, thank you for joining this particular session, and be healthy, be safe. Bye bye, take care.